Check. What's up, everyone? Thanks a lot for joining the live stream. You can join the Discord. Link is first link in the description. डिस्कॉर्ड का जो कुछ कंटेंट छूट गया था जो करूँगा यार, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ कुछ दिनों से, और कुछ दिनों तक चलूँगा, वीकेंड तक चलूँगा, तो इसलिए थोड़ी सी लेजी वाली स्ट्रीम्स कर रहा हूँ मैं, तो कुछ दिन तक थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। बट हाँ, काफ़ी कंटेंट रह गया था तो जो तुम लोगों ने भेज रखा है, तो वो कंटेंट देख लेते हैं यार, अपना खत्म करें। वी स्टार्ट विद दिस एज यूजुअल, लेट्स सी वेयर वी आर एट। Today I begin the Rakesh King, hi, क्या हाल है? Thanks for joining, man. 16th day of my climate fast. I'm alright, man. How are you? Well, I've been surviving on just water and some salts, and that is भैया देखते देखते पानी पीने में गिल्ट हो रहा है कसम से। taking a toll finally. Yesterday and today I've been feeling quite low on energy. And of course it's cold in the open. Last night it was -8 degrees and some 120 people were sleeping with me out in the open on this fast. Today let me take you through some similar fasts in the past and see the sensitivity of governments towards such genuine people's movements. In 2011, Anna Hazare ji, Yo शुभदीप, क्या हाल है? during the India Against Corruption movement, sat on a fast unto death. यार थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लाइक ऐसे अभी वीकेंड तक चलूँगा, उसके बाद से गेटिंग बैक एट इट, फिगरिंग आउट डिफरेंट कंटेंट इज वेल फॉर द स्ट्रीम्स। यूट्यूब वीडियो साथ में चल रही है, मतलब राइटिंग ही चल रही है अभी, तो उसकी इस हफ्ते तक राइटिंग चलेगी, अगले हफ्ते तक शूट करना शुरू कर दूंगा। सो आई थिंक विद इन 2 weeks आई विल बी एबल टू अपलोड एज वेल अ यूट्यूब वीडियो टू। For the anti-corruption bill, the Lokpal bill, to be passed in the parliament. And by the 13th day of his fast, the parliament unanimously passed the Lokpal bill and he happily ended his fast. मैंने सुना था कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ था अन्ना हज़ारे के फास्ट से भी। एम आई रॉन्ग अबाउट दैट? मैंने भी रिसेंटली किसी एनालिसिस करने वाले की बात सुनी थी किसी पॉडकास्ट में, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पर, आई विश आई डिड, आई डोंट। That was the sensitivity. Anna ends fast on day 13th, hospitalized. Thousands celebrate Lokpal victory. Wait, what? क्या हो गया कीबोर्ड को? क्या हो गया साला? ओके let's see. Despite this, he stated, I will not withdraw my hunger strike until the Jan Lokpal bill is passed in the parliament. I can die, but I will not bend. Hazare ended his fast on 28th August after the Lokpal bill passed unanimously. Okay, yes, I'm wrong. But I definitely heard it recently, actually, from a smart guy, from an intellectual. Of the government then. In fact, it was from the movement for India against corruption that the current government of BJP rose to power in 2014. And of course, we must expect the highest standards of truth and justice from themselves. Then in 1986, my own father sat on a fast unto death for the rights of the tribal indigenous people of Ladakh. On the 16th day of his fast, then Prime Minister Mrs. Gandhi flew from Delhi to Ladakh and broke his fast with a glass of juice. Later, they fulfilled the demand. Yo, Bhavishya, क्या हाल है? Thanks for joining, man. This again shows the sensitivity of governments to people's movements. आपके माइक की वॉइस कम आ रही है, एंड सोनम की वीडियो की बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, लेट मी फिक्स इट। सारा बिहाइंड द सीन देखो तुम। बीट बॉक्सिंग की सही आ रही है मेरी? हाय, कैसे होता है माइक
सिस्टम। यो जैनम, क्या हाल है? वेट, वेयर इज इट? वॉइस स्पीड, व्हाट द फक? क्या चल रहा है गाइज? ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कहीं इनकी तो नहीं आ रही आवाज़। इट्स ऑन 90। हाउ इज इट बेटर नाउ? बट अब वो भी ज़्यादा आ रही होगी ना यार, जो थोड़ा सा zzzz आती हो। मैंने वीडियो भेजी, वो देखो, आज वही देखना है यार, आज वही सब देखेंगे बैठ के। होल्ड ऑन, लेट मी चेक। 12 स्टार्ट हो गई, अरे वाह। दिस इज़ न्यू इंडिया सोनम सर, ओल्ड स्क्रिप्ट मत एक्सपेक्ट करो। ऑलराइट, लेट्स सी। And in 5 days, it will be my 21st day of fast, which will be the same as Mahatma Gandhi's longest two fasts, one in 1933 for the tribes and castes of India, and once in 1943 during the Quit India movement. This was 21 days was his longest fast, and we hope that by then the government will respond. भविष्य, अब ज़िंदगी ख़त्म होगी, एंजॉय। हु इज़ दिस गाय? ऑलराइट, ये बुद्धा कौन है? बुद्धा, आई वुड रीड दैट। यार ये वो है जो न्यूज़ चलनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ पूरा टाइम कंट्रोवर्सी और लड़ाई झगड़े और एलविश यादव। आई थिंक ये न्यूज़ ज़्यादा दिखनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए। दिस इज़ सोनम वांगचुक। सबसे आसान तरीका, आई डोंट नो द इंटायर बायोग्राफी, आई थिंक स्ट्रीम पे देखूंगा, कल या परसों देखूंगा। बट हाँ, मोटा मोटा दिस इज़ द गाय जिसके ऊपर वो फिल्म का कैरेक्टर, 3 इडियट्स का आमिर खान वाला कैरेक्टर बेस्ड था। एंड दिस गाय इज़ ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, फॉर लद्दाख। भाई पिछले 16 दिन से, एंड इवन यू गाइज हैव नो आइडिया अबाउट इट, जब भी मैं स्ट्रीम पे बात करता रहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट, राइट? बट आई थिंक हाँ, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट न्यूज। दैट्स व्हाई आई एम नॉट फॉलोइंग दैट एलविश वाला वो और वो सब। हु केयर्स मैन, हु केयर्स? नहीं जानता तो तुझे क्या? आदित्य, तू एलविश को जानता है और इनको नहीं। खैर, इट्स ओके भाई। जॉफरी, यार हो तो दिक्कत है, मीडिया की एलविश का सब को पता है, सोनम का किसी को नहीं। ट्रू। अगर पढ़ाई में मज़ा आए तो ज़िंदगी सच में एंजॉय होगी। ट्रू। ऊपर से बुढ़ा बोल दिया। नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं पता ना उसको। Then there is also हेलो आसिफ, हाउ आर यू मैन? थैंक्स फॉर the जॉइनिंग। story of Pottishri Ramalu, who in 1952 sat on a fast unto death for the creation of Andhra Pradesh out of Madras Presidency. Unfortunately, he died after 58 days of his fast, and the insensitivity of the government of Pandit Nehru was that they didn't fulfill it while he was alive, but 3 days after his death, when huge riots broke out. जॉफरी, ओल्ड इंडिया, नो इंडिया, सेम इंडिया, ऑल इंडिया। हेलो नीलेश भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आयुष भाई, आप कैसे हो? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। क्या हुआ इनको? इनको कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, पिछले 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। 16 दिन से, बिकॉज अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। पिछले 2 बार अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो प्रोमिस करे थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं अब तक। तो वो पिछले 16 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, और आई डोंट थिंक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कुछ खास अभी बोला, किसी ने विजिट करी है वहाँ तक। एंड चलो वो भी ठीक है। द वर्स्ट ऑफ ऑल इज मीडिया इज़ नॉट कवरिंग इट प्रॉपरली। अब जाके कुछ कुछ शुरू करा है मेरे ख्याल से 8-9 दिन बाद। आई डू रिमेंबर, मैं 2011 में मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, और पॉलिटिक्स में तो मैं अभी भी नहीं हूँ। आई नो दिस गाय, ओके। तो पॉलिटिक्स में तो मैं अभी भी नहीं हूँ, तो 2011 में तो क्या ही बात है। बट आई रिमेंबर मीडिया कवरिंग दैट अन्ना हजारे हंगर स्ट्राइक, डे एंड नाइट, पूरा दिन टीवी पे चलता ही वो था, पूरे दिन।
and that was like a fast for hunger strike for 13 days. And obviously ऐसे दिन compare करने की बात नहीं, but it's been 16 days and most people don't even know about it. It's amazing. He accepted the demands and gave the decision to create Andhra Pradesh. So sometimes death is one of the possible results, but such people do not worry as long as the cause is met. नीलेश भाई, अगर आप किसी पॉलिटिकल सीट के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन आपकी स्ट्रीम से क्लिप्स उठाएगी. ट्रू. Here's one. Fuck off, everybody. I don't give a shit. If it takes that for You think I us, care about you? I don't. I'm in it for myself. मैं सारे पैसे उठा लूँगा, सारे करप्शन करूँगा, मैं सालों नंगा करके भगा दूँगा पूरी दुनिया को, सारा पैसा मेरे पास. भाई मेरे यहाँ से एमपी के इलेक्शन में खड़ा हुआ है मेरा दोस्त का पापा. अरे चलो, बेस्ट ऑफ लक टू योर दोस्त का पापा. इफ़ अंकल जी अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया काम करेंगे पूरे. यही तो स्पेशलिटी है इंडियन मीडिया की यार. लेकिन अगेन वही इट्स द सेम थिंग. मैं 2011 में मुझे कुछ नहीं पता था पॉलिटिक्स के बारे में, अभी भी नहीं पता. हरियाणा सीएम चेंज, यस, बट आई डू रिमेंबर बहुत क्लियरली जो सारा अन्ना हज़ारे वाला सारा इट वॉज बीइंग कवर्ड रियली वेल. पार्टली बिकॉज शायद इट वॉज इन दिल्ली, फ़र्क पड़ता है आई थिंक. Ladakhis, then so be it. We'll do that, and I can extend my fast after 21 days if it comes to that, because this is now not just something about Ladakh. It is as much about मेरे दोस्त के पापा भी एमपी, उनका एमएमएस वायरल हो गया एंड मैंने अपने दोस्त को दिखाया. Fuck off, man. Why would you do that? Why would you do that? defending Oh my god. truth and justice, defending Like मेरे अगर ऐसा कुछ होता, so do you judge him on his technique or something? I don't know. the whole process of elections and promises made by political leaders during elections. You all know that the ruling party had pledged to Ladakh to safeguard That's why Indian media is ranked 161 out of 180. शिवदेव सिंह डिस्कॉर्ड पे डाल दे. नहीं मेरे भैया. it and अब वैसे क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट. under the 6th schedule of the constitution, not once but twice Manifesto for Ladakh, Leh and Kargil. Alright, constituency for 2019 Lok Sabha elections. in two major elections, and they won heavily based on those pledges in their manifestos. And today, if they don't keep it and go scot-free, it will set the worst precedents for all True, Bhavishya. True. I'll pin this. elections to come. It will make a joke of elections and promises based on which people trust and vote for governments. So it is not just Ladakh's responsibility, but yours too, to add to our voice and make it reach the governments. I'm not sure our voice has still reached the Prime Minister, because I really believe that नीलू मेरे भाई, love you शिवाय. he believes in truth and justice and will still keep his promises. I have not lost hope on this nation. I did check the Discord. मैंने अभी पूरा देखा, जस्ट अभी देखा मैंने पूरा. यस. बाकी जो फटने वाली बात है ना यार, जॉफरी, और शुड आई टॉक अबाउट इट और शुड आई नॉट टॉक अबाउट इट? यार मेरी दिक्कत ये है साला, मैं कोई अच्छा, शिवदेव कह रहा था ना पॉलिटिकल करियर रख ही नहीं सकता अच्छा. लाइक आई कैन नॉट कीप सीक्रेट्स मैन. इस बार भी सिलेक्ट हुआ. ऑलराइट, बताता हूँ. I'll get to it. Thank you very much and have a great day. I'll try to keep strong and alive, even if not kicking. Jai Hind. All right. We have one question. Are they we?
अच्छा देवी वेट व्हाट चेक डिस्कॉर्ड हाँ तो अच्छा अबाउट द डिस्कॉर्ड डीएम तो मैंने बेसिकली जॉफरी इज कॉल्ड स्टॉक गेट राइट तो स्टॉक गेट का लिंक मांगा था जॉफरी ने बहुत पहले भेजा था और एक स्ट्रीम पे देखा भी था The issue is the video just went private and I don't know how much I want to get into the stock gate. I'll just say कि Snoop Gate. It's called Snoop Gate? No way. मैंने stock gate पढ़ा कहीं सब कुछ यही कहते हैं क्या इसी को कहते हैं क्या See stock gate is stock gate नरेंद्र मोदी asked for contracts to be given. Snoop Gate क्या है Snoop Dogg. All you need to know about Snoop Gate. Let's say Stockgate Narendra Modi asked for contracts to be given to a woman architect, claims IAS officer. Snoopgate क्या है? All you need to know about Snoopgate. अरे बहुत कुछ है. Whatever the intention behind the report, it raises pertinent questions for Modi and Shah to answer, but both of them have chosen to remain silent, which has only added the fuel to fire. On November 17th, addressing a rally in Congress-ruled Karnataka, Modi said, "These days, attacks on BJP have increased. Attacks on Narendra Modi have also increased. Don't they see the waves created in the ocean?" Modi accused the Congress for employing cheap tricks, alluding to reports on 2 websites of the illegal surveillance of a young woman. स्टॉक गेट होगा फिर ओके पर स्नूप गेट भी है कुछ पता नहीं भाई सब कुछ है इस बार डॉक्टर नितेश शर्मा होगा शायद ऑलराइट आई डोंट नो डॉक्टर नितेश शर्मा कुत्ते को गाली पड़ रही पीछे मेरे पीछे होल्ड योर बेट वॉज मोर लाइक नीलेश भाई दिन में क्या काम करता है दिन में यार ये कैसा सवाल हो शिव योर बेट वॉज मोर लाइक राइट एनीवेज तो बेसिकली हाँ जो उन लोगों ने जिन्होंने एक्चुअल में वो वीडियो कम डॉक्यूमेंट्री जो भी थे डाला था उन लोगों ने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया लाइक कोबरा समथिंग राइट कोबरा क्या है वो कोबरा तूने लिखा था अरे यार ये मत भेजा करो ये सब चीज़ें मुझे तो ना बिल्कुल नहीं पसंद ये सिद्धू ने दिखाई थी सबसे पहले स्ट्रीम पे फ्यू रिमेंबर गाइस कहाँ मेरा था हाई रहा टाइम प्राइवेट कर दिया इन्होंने कोबरा पोस्ट कब से डरने लगा मे बी देर आर अदर थिंग्स गोइंग ऑन मे बी इट्स नॉट फियर फियर इज़ ओनली वन वे ऑफ कंट्रोलिंग समवन नीलेश भाई स्टॉप स्ट्रीमिंग रुक यार अभी करता हूँ चल छोड़ बाद में करूँगा अमन मिश्रा भाई मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आप क्रेजी दक्ष के साथ वीडियोस बनाया करते थे आई लव योर वॉइस ओह थैंक यू वेरी मच अमन मिश्रा लव योर कमेंट मैन ब्रो यूट्यूबर है वो पता है बट करता क्या है भाई मेरे अच्छा हाँ यार मैं भूल जाता हूँ मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ पे बता चुका हूँ तो इट्स लाइक सबको पता है नहीं यार मैं क्या कहते हैं मैं फिल्म मेकर तो मैं वीडियोस या फिर ये सारी चीज़ें बनाता हूँ जब लोगों को चाहिए होती है और लोग उसके लिए मुझे पैसे देते हैं कभी एडवर्टाइजमेंट कभी कुछ अभी भी कुछ शूट है कल है परसों है तो 2-3 दिन का शूट है तो इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ स्ट्रीम पे लेट आ रहा हूँ और कोई अच्छी स्ट्रीम हो नहीं रही आजकल वो दूसरी प्लेलिस्ट देख लेना बिफोर इट्स टेकन डाउन यू कैन ऑल्सो सर्च द नेम ऑफ द पर्सन जिन पे स्टिंग वीडियोज़ हैं ऑलराइट शादी की वीडियो बनाता है वाई संदीप महेश्वरी नॉट पोस्टिंग एनीथिंग हैज़ ही नॉट ओह समझ गया ऑलराइट मैन संदीप महेश्वरी ने कुछ पोस्ट नहीं किया ये क्या मुझे ये थंबनेल का फिर ट्रिक कर रहा था I don't need toxic people in my life. You know, it's life's too short. There's so much more to संदीप डॉक्टर बिंद्रा जीत गया क्या केस नहीं he's 2 हफ्ते does he post every week yeah he kind of does who knows man who knows I hope everything is well with him explore. But he's definitely a liar. He's definitely a toxic person, and I would warn people of him. Whenever I read about the dynamic between co-actors on set and the grapevine of the supposed animosity or problems that existed on set, it makes me think about the nightmare. Guys, let's do this. मुझे देख के क्यों मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि why don't you make videos like these, Tries and Diffuse Productions, and oh shit, मतलब nothing wrong with making videos like these. But इससे मुझे अचानक से वो चीज़ याद आई तो
I'm also remembering Mehfilm. I don't know if you know this or not, but I had this idea, which I think some of you guys know about it, where I wanted to talk about films and like dissect films live. तो अगले फ्राइडे को करते हैं एंड वो देख लेना मूवी रिजर्वायर डॉग्स, ठीक है? रेशो, क्योंकि अभी मुझे अचानक से याद है, ये कोई रीज़न नहीं है. डॉग्स, ये क्या हो रहा है? रिजर्वायर डॉग्स. वॉच दिस मूवी, यू कैन वॉच इट ऑन प्राइम और ऑन अदर प्लेसेस आई गेस, आई डोंट नो. सो या, वॉच दिस मूवी. विल डू इट ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को रिलीज होती है ना मूवीज़, तो विल डू महफिल ऑन फ्राइडे. What the fuck Nilesh, you just laughed at wedding video maker. वो फिल्म मेकर्स नहीं है क्या? वो अच्छा काम नहीं करते क्या? नहीं, वो फिल्म मेकर्स नहीं है, आई डोंट थिंक सो. और जब मैं कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं भी कोई फिल्म मेकर थोड़ी, मैं भी कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहा हूँ. इट्स ऑल बुलशिट मैन. ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है ना? नहीं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है यार. ग्रेट सॉन्ग इन माई ओपिनियन. ऑलराइट, पहले एक बार वो वीडियो देखते रहो, चल रही थी. Whenever I read about the भाई Reservoir Dogs, it's the first Tarantino movie which really got, you know, इसमें से what I want to talk about is blocking. Most people don't think about blocking, and it's पता नहीं यार कितने लोगों का इंटरेस्ट होगा, कितने लोगों का नहीं होगा, but it is really interesting how, you know, little things play with your mind. एक दिन मैं randomly ये मूवी देख रहा था और इसकी ब्लॉकिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान गया ना मेरा. तो this movie sort of, you know, fucking was like कि भैंसिया, मैं फिल्म इसके बारे में तो डेफिनेटली करना ही करना है. एंड ये टेरेंटिनो की फर्स्ट मूवी थी विच रियली ब्रोक आउट. आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट मूवी मे बी. और भाई एक्सट्रीम सक्सेस. और अभी रिसेंटली तो नहीं, मतलब इन मॉडर्न टाइम्स क्विंटन टेरेंटिनो किसी उसमें था, पैनल पे था, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, एंड ही वाज लाइक कि किसी ने पूछा था कि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड ही वेंट लाइक मेक अ मूवी लाइक रिजर्वायर डॉग्स, इट डजंट फकिंग मैटर, द कंपटीशन डजंट मैटर इफ यू जस्ट मेक अ ग्रेट मूवी, एंड दैट्स ट्रू. Tarantino is great at writing dialogues. He's great at writing dynamics between characters. He's very filmy, too filmy for my liking, but that doesn't really matter. I too manifested about blocking while watching. My girlfriend. All right. शैतान देखी है? नहीं यार, शैतान नहीं देखी. मैं शायद वो देखूँगा यार, वीर सावरकर देखूँगा मैं. Oh my God, about the वीर सावरकर thing. Like भाई साहब, किसी भी फ्रीडम फाइटर को ना हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि मैं करूँगा ऑफ कोर्स. आई वुडंट से एनीथिंग अबाउट वीर सावरकर, बट ये जो शुरू होता है जिस तरीके से, ये जो टीज़र था, जो पहला टीज़र आया था, दैट वाज नॉट गुड. क्योंकि वीर सावरकर के बारे में सब लोगों को ये होता है कि हाँ, दे वर लाइक ऑपोजिट्स when it comes to ideology, Gandhi and Veer Savarkar, but both of them, you know, fought in their own ways for our country to be made a country. प्राइम पे रेंट पे है, सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल नहीं है, then there might be different ways. हाँ, this fucking teaser man. तो भाई, तो मेन चीज़ क्या है कि जो वीर सावरकर के अगेंस्ट कुछ लोग कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि he was involved in the shooting of Gandhi, and as far as I know, 2 बार केस हुआ था और दोनों बार it came out that he was not involved. Right, it is great. It would be horrible अगर 2 freedom fighters आपस में ऐसे करेंगे तो, right, it would feel horrible, that's all. तो look at how this starts, this teaser. Now see, we all denote this image with Gandhi. हमको क्या देख के क्या लगता है, गांधी बन रहा है, right? We all think that. Wait, what? वीरा ह्या मातेचा पुत्र, ह्या मातेचा हिरा, खबरदार फितुरांनो भाग फिरा नाही तर पर्वत. So I just didn't like that. His gay partner shot Gandhi. What are you talking about? Wait, I didn't know about that at all. I didn't even know he was gay. It doesn't matter वैसे तो. If his gay partner shot him, it doesn't mean कि he's definitely involved in it. Maybe he was, maybe. भाई 2 बार केस हुआ था. I think courts ने दोनों बार कहा था कि he's not involved. I'm talking about that. People say Subhash Chandra Bose is flying in. Fuck off, man. हाँ भाई, चितो कैसा है? हाँ बढ़िया भाई, आप कैसे हो? But I love भाई, ये क्या नाम है,
रणदीप हुड्डा की जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके ट्रेलर वगैरह में देख के ना. एंड थोड़ा सा मैंने देखा, दिस इज अ मूवी आई डेफिनेटली बी इमोशनल वाचिंग, दैट्स आई नो दैट फॉर श्योर मैन. नॉट बिकॉज ऑफ द टॉर्चर सीन्स, इट्स ऑल फाइन, यू नो, because of what I heard, you know, like he was writing on the walls with his nails and rocks. Yeah, that kind of stuff always gets me. The dynamic between co-actors on set. But again, the official position is he was not involved. Why would you start your teaser like this? And see, there's a peaceful type music, right? You see Gandhi ban raha hai. You hear bullets. सावरकर वीरा ह्या मातेचा पुत्र And now this is very aggressive music. And they were ideological opponents, right? Sure. Movie का नाम क्या है? ह्या मातेचा हिरा खबरदार. I'm catching on to you, Shubdeep. मित्रांनो भाई, शुभदीप तेरी एज कितनी है? नहीं, जेनुअनली तेरी एज कितनी है? मैं पता है यार, सी आई डोंट केयर अबाउट मोस्ट थिंग्स, आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, बट दैट इज समथिंग यार. ये जो साला जो पूरा सीन है ना, ये लाइक द होल फकिंग दिस pedophile shit, that is something I just want to stay as far away from it as I can, dude. That is the only thing that I don't even, you know, मतलब बुरी से बुरी चीज़ है, कोई किसी को मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, इट्स ऑल लाइक आई कैन बी लाइक ओ या आई कैन लुक एट इट एंड बी. मेरा इशू क्या है, आई कैन लुक एट कोई भी बुरी से बुरी चीज़, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का नाखून निकाल रहा है, कोई किसी दांत प्लास से निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें देख के आई कैन डिसेंसिटाइज माई सेल्फ टूवर्ड्स इट, एंड यू समवट हैव टू डू दैट, राइट? तो इवन जब मेरे किसी डॉग को भी कोई चोट वोट लगती है तो मुझे देख के नहीं होता, राइट? वो चीज़ करनी है, मतलब हम गोना दवाई लगानी है, ये सारी चीज़ें करनी है. मुझे खुद को लगे कोई बात नहीं, इट्स ऑल फाइन. आई थिंक इट्स अ लिटिल वर्स व्हेन तुम्हारे किसी क्लोज वन को कोई बड़ा घाव या चोट होती है. इट्स ऑलवेज अ लिटिल वर्स देन तुम्हें खुद हो तो, राइट? बट दिस pedo shit, man, dude, that is something I'll just stay as far away as possible, because I almost fear कि I'll be desensitized towards it, कि हाँ चलो हो रहा है तो हो रहा है. नहीं, never. Because इस मूवी के टारगेट ऑडियंस राइट विंग बिलीव ही वॉज इन्वॉल्व इन एंड आर प्राउड ऑफ इट. एग्जैक्टली, दैट्स माई फकिंग इशू. बहस क्या चीज़ बनती बाद में पॉलिटिकल वैल्यू रहती है. डूड, यू शुड बी एबल टू सेलिब्रेट योर फ्रीडम फाइटर्स रिगार्डलेस ऑफ द लीडिंग पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. आई थिंक रणदीप हुड्डा ने भी किसी उसमें बोला था कि इंटरव्यू में, मैंने क्लिप देखी अभी, कि क्या बोला था, ही सेड के किसी इससे क्वेश्चन, ये लोडेड क्वेश्चन था रणदीप हुड्डा से. वो बोला था क्या 10 साल पहले, मतलब यू नो बीजेपी के आने के बाद, बीजेपी के आने से पहले क्या ऐसी मूवी बन सकती थी? एंड आई थिंक रणदीप हुड्डा आंसर्ड, नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती उस टाइम पे बनाते तो, विच मीन्स बेसिकली अगर कांग्रेस के टाइम पे बनाते, क्योंकि अगेन कांग्रेस रिलेटेड टू गांधी एंड वीर सावरकर, सम पीपल लिंक हिम विद गांधी, बट आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस. क्योंकि आई हर्ड इट समवेयर. हाँ, इंदिरा गांधी celebrated Veer Savarkar. How is the Sangh Parivar stamping? Why did Indira Gandhi issue a postal stamp to honor Veer Savarkar? I think एक documentary भी बनाई थी, in fact. Indira Gandhi, who was like the most, I think you can say dictatorial out of the Congress. I don't know. Everyone is saying that this time BJP will win by taking up approximately 400 seats. Well, that's what BJP is saying, and they might actually do that. But I think ये slogan ही BJP ने शुरू करा है. So this might be true, but it's more like a slogan, I think. Hundreds of communists were also tortured in Andaman's cell along with Savarkar. They did not bow down to British and still remained unnamed in popular culture. All right. True. Sure. Most of the people who worked very hard for our independence are unnamed. That's true, man. But this is how things happen here. I'm not saying it's good, it's right. It is how it is. Three Idiots is not my story, says Sonam Wangchuk. Anyways.
and the grapevine of the supposed animosity or problems that existed on set, it makes me think about the nightmare it must have been in order to complete the shooting of the film. I remember seeing the disturbing documentary on the making of The Shining, and just the inhumane nature with which Stanley Kubrick treated the lead actress Shelley Duvall almost. Okay, I was talking to someone. I was talking to someone recently and मुझे कुछ सुनने में ऐसे मिला कि जो संजय लीला बंसाली है ना, name dropping. I heard this, I don't know for sure. I have never even been to fucking Bombay or any real film set. Here's what I heard. Sanjay Leela Bansali ji is extremely rude on set. Extremely rude on set. हद से ज़्यादा. एक तो होता है रूड होना, एक एक्सट्रीमली रूड. और ये क्यूब्रिक को तो याद आई मुझे. एंड यू नो व्हाट, पर्सनली आई थिंक इट्स फाइन. आई डोंट गिव अ शिट. आई थिंक इट्स फाइन. भाई गाली देना तो क्या, मेरे ख्याल से सेट पे अगर तुम किसी को चप्पल भी मार रहे हो ना, दैट्स फकिंग फाइन. फॉर मी इट इज जस्टिफाइड. इट डजंट फकिंग मैटर. As long as you're doing it for the benefit of the film, for the benefit of the project, वो करने से प्रोजेक्ट अच्छा हो रहा है तब. In fact, another story I heard of a Hollywood director जिसको एक बच्चे को रुलाना था सेट पे, बच्चा रो नहीं पा रहा था. उसने बोला कि अब मेरे एक्शन बोलने पे तुम नहीं रोया तो ये जो बंदा है तेरे कुत्ते को उधर जाएगा और गोली मार देगा. उसने एक्शन बोला, बच्चा नहीं रोया, वो बंदा कुत्ते को कहीं बाहर लेके गया और उसने हवा में गोली चलाई. बच्चे को लगा उसका कुत्ता मार दिया गया, बच्चा रोया. बच्चों के साथ इट्स अ लिटिल ट्रिकी, यू नो, क्योंकि तुम लिटरली जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज कर सकते हो किसी को. बट in 99% of the cases, I think if you're being a complete and utter dick on sets, it's fucking fine, as long as it's making the project better. But as soon as you are being a dick just because of your ego, I don't think that's okay. And जो मैंने stories सुनी उससे it sounded like Sanjay Leela Bansali ji was being absolutely horrendous to work with because of his ego. That makes me wonder if it is even possible to be a nice person and actually make a good shit involving hundreds of people. I heard he was talking a lot of shit to Deepika Padukone. तो बाकी सारे जो छोटे मोटे लोग हैं, you know, जैसे अगर मैं किसी फिल्म सेट पे रहूँगा मैं तो खैर चप्पल ही खा के आऊँगा. And that's fucking fine if it's making the project better, to be honest. इस शॉट में गन्स एंड एम्यूनेशन दिख रही है. कहीं कोई इसका बिजनेस तो स्टार्ट नहीं होने वाला? नहीं, आई डाउट इट. ब्लैंक गन्स यूज़ होते हैं, पहले ही इसका ठीक ठाक बिजनेस है. ओके, ये क्या हुआ? मतलब मैं तो कुछ और बात बता रहा था, कोई बात नहीं. सो एनीवेज, एंड आई ऑल्सो हर्ड कि संजय लीला बंसाली रिसेंटली कास्टेड हिज रिलेटिव, और उस रिलेटिव को लिटरली बोल बोल के एक्टिंग कराई. अच्छा अब ऐसे कर, बच्चा ऐसे कर, बच्चा ऐसा कर, ऐसे कर. तो व्हेन यू आर डूइंग शिट लाइक दिस ना, कि तुम अपने रिलेटिव को कास्ट कर रहे हो एंड यू आर कंप्लीटली नाइस विद देम एंड यू एज अ ग्रेट डायरेक्टर रियलाइज दे डोंट इवन डिजर्व टू बी इन द पोजिशन, देन आई नो यू आर डूइंग दिस शिट फॉर योर ईगो. यू डोंट रियली केयर अबाउट द प्रोजेक्ट. सो फॉर मी दैट्स व्हेन इट्स नॉट फाइन. नाउ ऑल ऑफ दिस इज हियर इन से, मैंने बस सुना है, मुझे नहीं पता. बट अगेन, you can be as big of a dick as you can, as long as it's serving the project, because projects last forever. भाई बस्टर कीटन की मूवीज हम देख सकते हैं ना. अभी बस्टर कीटन से बात नहीं कर सकते, बस्टर कीटन को नहीं देख सकते. तो फॉर मी द मूवी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ यू आर फीलिंग वाइल यू आर फिल्मिंग द मूवी. ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, बट यू कैन बी an absolute and utter dick as long as you're doing it for the benefit of the film. Whom do you find most rude and fake Bollywood actor and actresses? यार रूड का तो पता नहीं. सारे everyone is I like Salman Khan. I actually like Salman Khan की जो रियल लाइफ इमेज है. You stream because of your ego. Stop it. True. I'm not at all surprised. Classist है Bollywood वाले. So what I heard, like he said horrible things to Deepika Padukone, like, you know, मैंने बनाया तुझे, this and that, whatever. Who do you find more? Okay. I like Salman Khan's real life character because भाई he calls a spade a spade. भाई जो चीज़ें टट्टी है ना, award shows, ये सारी बकचोदियाँ, भाई जो चीज़ें बकचोदी हैं, क्या congratulations your film, on your film, it's all about the bullshit, man. All about the bullshit and none of this fucking matters. भाई congratulations for your film, कुछ हमारे लिए आ सकता है एडिटिंग से रिलेटेड. हाँ जी ज़रूर.
But all of these awards are fucking bullshit. Absolute and utter bullshit. My film won 3, I can say that. Still. I'll never win another one again. Stream still gave, right? But that's what I truly believe. It doesn't fucking matter what award. Like, you can go bilkul nature se niche level all the way to Oscars. All of them. Complete bullshit. None of it means any fucking thing. So I love Salman Khan when he says shit like this के ऐसे वो film फेयर पड़े रहते हैं दरवाजे को hold करने के लिए. I love that. As a means to channelize the same trauma in her performance. There are innumerable anecdotes about the various spats and disagreements that would arise on Francis Ford Coppola's This guy and specifically this video helped me a lot, man. especially those of Apocalypse Now and Bram Stoker's Dracula. Nothing is more ludicrous than the anecdote where Ben Affleck and David Fincher fought with one another on the creative choice of Ben's character in Gone Girl wearing Bhai, this is what I'm fucking talking about. This is what I'm... Oh my god. I don't like Ben Affleck इसलिए. Listen to this. Stoker's Dracula. Nothing is more ludicrous than the anecdote where Ben Affleck and David Fincher fought with one another on the creative choice of Ben's character in Gone Girl wearing a rival team's baseball cap, which presumably halted shooting for 4 days. Various personalities coming in conflict with one another. Ben Affleck को जो टीम पसंद है रियल लाइफ में उसके ऑपोजिट टीम की कैप नहीं पहनने का मन था. 3-4 दिन तक ये भसड़ चली है. Who the fuck are you? Who gives a shit? नीलेश को अगर ऑस्कर भी मिलेगा नीलेश रिसीव करने भी नहीं जाएगा. नहीं, आई माइट गो. पहली बात तो मुझे कभी मिलेगा नहीं. आई माइट गो एंड आई माइट एक्चुअली डू दिस. तुम्हें क्या लगता है मैं सोचता नहीं वो चीज़ें. Have a look at this, guys. Which one was it? It was this one, right? Let's be frank about this next award. It means more to us than the most. भाई हिचकॉक की वॉक में इतना सस्पेंस है, इतना मूवीज में नहीं होता आजकल. Thank you. Indeed. He said thank you and then he was very much indeed. It is inevitable on film sets, as one is bound to disagree with one another on the True, थप्पड़. थप्पड़ नहीं अच्छा विल स्मिथ थप्पड़ और decisions. Through this video, I want to reference थप्पड़ से तो भाई तापसी बन्नू आती थी, दिमाग में और कोई नहीं आता. several actors who came in conflict with either actors or directors on Hindi film sets, in turn leading to several complications in completing the film. So here is Trident Refuse Productions with 10 Indian celebrities who openly hated working with actors. Sanjay Leela Bansali. Many people consider Sanjay Leela Bansali's best work to be his debut film Khamoshi, for it is a screenplay that never gets distracting with the opulence that Bansali films were synonymous with years later. A heartfelt tale about interpersonal relationships that often goes unnoticed. Bansali, however, did not have a cordial time on set shooting with Nana Patekar, reflecting on the experience, stating that he doesn't really have fond memories of the same. I did not enjoy the experience of working with Nana Patekar, to be very obvious, to say it. It was a film that the whole process of acting with a person, I didn't enjoy the film. हिचकॉक की वजह से क्रिटिक्स का बर्थ हुआ था क्या? I don't know. Why मतलब कहाँ सुना था तूने ऐसा कुछ? Ramp walk ना Hitchcock walk, हाँ. 1908 became the first America's first dedicated movie critic, filling one page of the New York Dramatic Mirrors with reviews of late film. A very short history of film criticism. Hi, ये very short history तो नहीं है. For as long as there have been films, there have been people writing about them. As film transformed from Nickelodeon fancy to established art form, all the way to becoming the dominant medium of entertainment as it exists today, film criticism has changed as well. However, just as the history of film is too broad a subject for any one article to summarize, the history of criticism as a whole is equally too vast. Instead, it is more worthwhile to examine popular film criticism and discuss its influence in the past century. The article is a very brief history. All right. Nickelodeon chi. Suna tha aisa. All right. To define the term for anyone unfamiliar, popular. Fuck off with the criticism, man. शायद वो खुद भी Elias के अंडर क्रिटिक लिखता था. शायद सिनेमा बियॉन्ड एंटरटेनमेंट किया. Oh. Okay. I think then they might be talking figuratively. Right? To define the term for anyone unfamiliar, popular film criticism is the evaluation of what a film is doing narratively, thematically, and formally.
It typically takes the form of published reviews and essays that are meant to inform readers with interest in the art form. Furthermore, film criticism, यार ये मेरे साथ कई बार होता है, जैसे मैं ये पढ़ने लगता हूँ ना, फिर मैं यहाँ की जगह फिर से यहाँ पढ़ जाता हूँ. Am I dyslexic? Furthermore, film criticism attempts to explore why films are not working. Are not working. Veteran Canadian film critics are right, believes that what generally defines film criticism is expertise, insight, and an ability to provide a judgment of a film's quality that's backed up by the cogent argument. Fuck off. It's how did it start? Like all criticism throughout history, popular film criticism was born in print. It turned out I doubt it, man. Okay, it started with French cinema, I guess. At the turn of the 20th century, French film pioneers Auguste and Louis Lumiere invented what we today call as what we think of today as films. And they're short films showing employees leaving a factory or workers knocking down a wall, were huge hits at technological exhibitions. Trade paper, शुरू से ही. Trade paper journalists visited the shows and reported back on what they witnessed. Technically speaking, these reports were the first film reviews in 1895. For example, the New York Times published a short review of a Paris exhibition at Lumiere Films in 1896. They published another review. ठीक है, तो review हो रहा है तो criticism भी हो ही रहा है एक तरीके से, I guess. Cinematography वाली वीडियो देखो ना, तुम ही देखो ना, ये क्या हो गया. यार मैंने थंबनेल देखा, मुझे पसंद नहीं आया ये 50x zoom. Who gives a shit, you know? पर देखते हैं. Video will be better, I'm sure. This video is brought to you by Movie. Get a whole month free at movie.com/docinema. About a month after Oppenheimer's Trinity test in 1945, film manufacturer Kodak, located 3,000 miles away from the test site, started receiving complaints from customers that their film was foggy, and small black dots were showing up all over the film. Nobody knew about the nuclear tests at the time, but researchers at Kodak discovered that the spots on this highly sensitive material were caused by radiation. And so Kodak accidentally became the first people to know about the secret tests of the American government. Fast forward 80 years, and the story comes full circle, because for Oppenheimer, Christopher Nolan used large format black and white film, custom made by the factory of Kodak. These days, not many movies are shot on analog film anymore, because of the rise of digital cameras, and because film is very fragile material. Christopher Nolan लगभग सारी movies नहीं देखी है. Oh, okay. जॉफरी में तो पूरी दुनिया का ज्ञान है, नज़र नहीं लगा रहा. By the way, Oppenheimer, really good film. मैंने एक बार देखी है. I want to watch it more before talking much about it. Fucking loved it. This is the only film जो मैं फरीदाबाद से this is the only film जो मैंने ज़िंदगी में अकेले देखी है. मैं फरीदाबाद से नोएडा गया था to watch it अच्छे से. Fucking loved it. I didn't even tell most of my friends. और जैसे मेरे किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने पूछा, तू जा रहा है देखने, अच्छा मैं भी चलूँ, I was like, nope, I'm going alone. It can get scratched easily, and it's not that easy to transport either. The original Oppenheimer film roll weighs a whopping 272 kilos and is almost 18 kilometers long. The threat to film came when digital became prescriptive, when it basically started to say, this is instead of film. However, there are a few filmmakers out there who still to this day swear by the analog format, Christopher Nolan being one of them, who since the beginning of his career has shot all of his movies on analog film. The same goes for Quentin Tarantino, who is a true advocate for using film and will Tarantino hates digital. He hates it. never shoot a movie on digital. It does nothing for me. I mean, I actually think I'm getting when I go to a movie and I realize it's either been shot on digital or being projected in digital. So why is it that these filmmakers are still choosing to shoot on this quote-unquote older format? Does that mean that analog is still better than digital? Well, in a way, yeah. This is a single frame from Oppenheimer, and even though it is shot on analog film, it has a resolution of roughly 18K. To give an indication of how large this image actually is, this is your standard 8mm film roll, often used for old home videos. Then there are 60mm used for many music videos. क्या पता मैंने ज़्यादा करी देखना में मूवी अपने इसलिए अच्छी लगी हो. क्या पता मैंने ज़्यादा करी देखने में मूवी आपने इसलिए अच्छी लगी हो. नहीं. जो मैंने मेहनत करी, मुझे पता है मैंने मेहनत क्यों करी. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ एनालॉग फिल्मिंग इज़? यार एनालॉग फिल्मिंग बेसिकली होता है जो रील्स पे शूट होती है ना, जो पहले कैमरास होते थे, वो अब आजकल तो मेमोरी कार्ड में हो रहा था सब कुछ. पहले कैमरास होते थे उनमें रील होती थी. तुम लोगों को पता नहीं, ओह फक तुम बच्चे हो, कम्प्लीटली मिस्ड इट. तो बेसिकली ऐसी ये रील होती है, राइट. वो कैमरा के अंदर डलती है रील, एक ऐसे पट्टी सी होती है, वो रोल हो रखी होती है जैसे गन नहीं होती उसकी तरह से. तो रील ऐसे पीछे जाती है सेंसर के पीछे, डायरेक्टली नहीं. यू क्लिक द शॉट, और वो जो शॉट है ना, जो भी तुम फोटो खींचते हो, वो इस पे ऐसे सेव हो रहता है. इसके बाद ये जाती है लैब में, लैब से प्रिंट होकर तुम्हारी फोटोज़ आती हैं. एक्चुअली आई हैड सीन इट इन माय ग्रैंडमा हैज़ वन. ऑलराइट. तो बेसिकली वो 8mm इज़ लाइक जो यूज़ करते थे, 16mm वाज लाइक होम वीडियो, 35mm वाज जो रिसेंटली फिल्म्स वगैरह में यूज़ करते थे तब भी. भाई सबका रहे हैं कि एलवेश का खिलाफ कोई सबूत नहीं है. भाई सबके कहने से क्या होता है? हो सकता है ना हो, आई डोंट नो मैन. सबके कहने से क्या होता है भाई? अगर सबूत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उसने शायद नहीं करा कुछ और वो रिहा हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है. विच इज फिल्मिंग इज़ बेटर? यार मैं बड़ा तब हूँ जब डिजिटल एज आ चुकी थी. मैंने फिल्म कैमरास का भी यूज़ ही नहीं करे हैं.
तो दैट्स द इशू. आई थिंक आजकल तुम डिजिटल को फिल्म की तरह दिखा सकते हो, फिल्म को डिजिटल की तरह दिखा सकते हो. 99.9999999% ऑफ द पीपल वोंट बी एबल टू टेल. बट ये 35mm फिल्म्स जो है ना, मोस्टली, जैसे ये भी कैमरा मेरा फुल फ्रेम कैमरा है, टू मच फॉर स्ट्रीमिंग. कल बिल मिलने के लिए बोल रहे हैं. ऑलराइट. तो जो 35mm है यूजुअली यूज़ करते हैं फिल्म्स के लिए, राइट. जब ये IMAX शूट करता है, नोलन IMAX शूट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कर रहे हैं 70mm में. तो द साइज इज टू बिग. 5mm, which is like the Big Mac, the go-to standard for almost every cinema classic. Then we have regular 70mm, which Tarantino's The Hateful Eight was shot on. And This is how big 70mm is. lastly, there's 70mm IMAX, used for the Oppenheimer, the largest analog film format in existence. Hence the name IMAX, meaning image maximum. I mean, an IMAX. भाई जो द डार्क नाइट मूवी है ना, भाई साहब, जो डार्क नाइट मूवी है ना, शॉर्ट फिल्म और फुल फिल्म. व्हाट डू मीन? भाई सावरकर पे पहले भी मल्टीपल फिल्म्स बन चुकी हैं. जस्ट चेक्ड. ओह, तो वही तो, इस चीज़ को पॉलिटिकल बनाने सो फकिंग स्टूपिड मैन. भाई मेरे पास सोनी का कैमरा है. ऑलराइट. सोनी का कौन सा कैमरा है? जो द मूवी थी डार्क नाइट, जिसमें बैटमैन जोकर वाली, जो नोलन की थी, उस मूवी के टाइम पे मेरे ख्याल से दुनिया में शायद 4 IMAX कैमरास थे. IMAX पे शूट करी है ना नोलन ने, एंड आई थिंक एक तोड़ दिया था इन लोगों ने. सो या, ही इज ऑलवेज बीन अ रियल प्रोपोनेंट फॉर फिल्म एंड IMAX especially. It doesn't have an equivalent digital resolution because it's analog format with a random grain structure, but it would be about 18K minimum or something. But even though size does matter, bigger is not always better, because the major disadvantage is that IMAX cameras are huge, heavy, and noisy. This is what an IMAX camera sounds like. In this interview, fellow Dutchman and cinematographer Hoyte van Hoytema explained that most of the time they had to record dialogue on a different camera so that you can hear the dialogue, and then shoot the same take again on IMAX and add the sound from the other take. To see if Chris could probably salvage the sound of it and put it in a film. On top of that, for actors, it can also be quite daunting to hear that sound when they start recording. You'll literally hear the money rolling through the camera, and every take matters even more. And lastly, the filming process is very different. हाँ, मेन तो चीज़ यही है ना कि भाई इसका पैसा हो लगता है रील का. जो शॉट गया वो गया. इट्स नॉट लाइक मेमोरी कार्ड, यू कैन जस्ट डिलीट इट. नहीं, फिजिकल तुम सेव कर रहे हो उसमें, रील्स में. जो शॉट गया गया. So Oppenheimer is shot in analog, means in this tape. हाँ, in the largest tape there is, right? Reel or whatever you call it. भाई जो नोलन की अगर सिनेमाटोग्राफी भी होगी ना, अगर तुम डन कर देखो, it is so massive. It feels different. It literally feels different. Look at this. Look at these frames. It's difficult to convey why or how. Hold on. तेरे से ये भी शॉट है. क्यों थक रहे हो भैया, क्या हो गया? There you go. Have a look at this shot, guys. It literally feels different. It's difficult for me to explain. बहुत सारा टेक्निकल हो जाएगा यार, बहुत सारा टेक्निकल हो जाएगा. If I go into 35mm full frame APS-C वगैरह Super 35, तो it will be difficult for me to explain. अरे ये कौन सी चैट आ गई पुरानी? There you go. How much does it cost to make a thriller short film with rental equipments? यार ऐसे ज़रूरी नहीं है ना. डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितने दिन का शूट है, तुम कहाँ पर शूट कर रहे हो, तुम्हारे पास इक्विपमेंट ऑलरेडी क्या है, तुम कितना रेंट कर रहे हो, तुम लोकेशन में पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कितना दे रहे हो, खाने का पैसा कितना है, तुम्हारे पास एक्टर्स कितना ले रहे हैं, तुम्हारा साउंडमैन है या नहीं है, हाउ यू आर मैनेजिंग दीज थिंग्स, एंड हु इज़ द फाइनेंसियर, देन हु इज़ द डायरेक्टर. अगर अलग अलग लोग हैं, डायरेक्टर, फाइनेंसियर, एडिटर. भाई मैंने जब शॉर्ट फिल्म बनाई, मैंने पैसा बचाने के लिए आई हैड टू डायरेक्ट इट, आई हैड टू डू द सिनेमाटोग्राफी, आई हैड टू डू द राइटिंग, तो आई वॉन्ट टू डू वो चीज़ अलग है. एडिटिंग, आई हैड टू डू द कलर, आई हैड टू डू द साउंड डिज़ाइन, आई हैड टू डू द मिक्सिंग, आई हैड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड मेरे साथ दीपक था, हु वॉज डूइंग एवरीथिंग विद मी. मेरे साथ सूरज था, हु वॉज डूइंग एवरीथिंग इन द प्रोडक्शन विद मी. सो आई हैड दीज पीपल, लाइक वी वर लाइक 3 or 4 people. तो या anyways, it can be done for very cheap, but it's very difficult. वो कहते हैं ना यार, here's what they say about it. It's like you have a triangle. I don't know. I might fuck up the saying. ठीक है, you can get something which is good. ठीक है, you can get something pricey, and you can get something quick. Wait, I'm getting it wrong. What was the fucking saying? I'm getting it completely wrong.
अच्छा नहीं, नॉट गुड, फक, ये गुड नहीं है ये, ठीक है? कैसे बंद करूँ इसे, कैसे मिटाऊँ? गुड नहीं है ये, ठीक है, तुमको पता है ये गुड नहीं है. यू कैन गेट समथिंग, हाँ, दिस इज द सेइंग, यू कैन गेट समथिंग फास्ट, you can get something pricey, or you can get something quick. Now you can get two out of this. If you want something good, दो चीज़ हो सकती हैं. If you want it to be good, fuck off. I completely fucked it up. So basically, you can have something good if you have money, then you can get it fast. ठीक है? If you want quick as well, it's not gonna work. Wait, what the fuck? Fast and quick are the same. Fuck off! The point I'm trying to make is, या तो तुम बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, या बहुत ज़्यादा पैसा दे दो, या बहुत ज़्यादा वो दे दो. टाइम और पैसा, it's ultimately that. टाइम और पैसा. But why did he shoot on this reel if it takes money rather than using digital? Because again, it is different. There is physical differences. Digital से you can mimic it. It's like बहुत ही चूती वाला example है, but it's like saying कि why not shoot films on iPhone, right? दीपक भैया तो जन्म के साथी हैं, ट्रू. इनको क्रेडिट दिए या ये भी लाइव आकर गाली देंगे? नहीं यार, मेरी फिल्म पता है कैसे शुरू होती है? होल्ड ऑन, हाउ डू आई होल्ड ऑन, आई विल शो यू समथिंग. आई एम एक्चुअली अ लिटिल प्राउड ऑफ इट. आई विल शो यू समथिंग, गिव मी अ सेकंड. I'll show it to you because I'm fucking proud of it, man. हाँ बाजी, कर रहा हूँ और कुछ नहीं है. It's something which is not very professional, but I liked it, so I did it. और थोड़ा सा प्रोफेशनल, कहीं there's an argument, थोड़ा सा प्रोफेशनल होना भी चाहिए भैया. तुम फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भेज रहे हो, who gives a fuck, man, right? All right. So hold on. This is the starting frame of my film, guys. This is the starting frame. There you go. So I'm proud of this. I heard somewhere, पता नहीं किसी स्टोरी सुनी थी मैंने बहुत टाइम पहले. So basically, this is how films usually start. A film by, and then there's the name of director. And well, I did it like this. I heard someone talking about, पता नहीं किसी फ्रेंच डायरेक्टर की, पता नहीं कौन से डायरेक्टर की, कि उसकी ना फिल्म में ऐसे शुरू में लिखा था फिल्म बाय, एंड देन दिस द एंटायर क्रू ऑफ द फिल्म. एंड या दिस इज एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म. एंड एक सीक्रेट बताऊँ. सो ऑल्सो आई डेंट नो दीपक को क्या बोलूँ, दीपक को क्या नाम दूँ, क्योंकि दीपक ने सब कुछ काम करा मेरे साथ, लिटरली सब कुछ काम करा मेरे साथ. तो आई डोंट नो दीपक को क्या बोलूँ. दूसरी चीज़ ये ना, मैंने पहले लिख के दिए थे दीपक को, ठीक है? तो नीलेश शेट्टी कॉमा, राइट. उसके बाद यहाँ पर भी कॉमा था, अनुराग राव के बाद भी कॉमा था, बिकॉज आई वॉज बीइंग मोर फकिंग pompous, like it was almost like, and many more, but these were the people who were directly involved in the making of the film. So yeah, I'm actually proud of doing that. Anyways, too much TMI. Anyways, भाई पब्लिक कब करोगे यार? अभी बस आई थिंक 1-2 महीने में. थोड़ा सा कुछ यार पहले प्रमोशन के लिए करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. क्या करना था? Different from digital as well. You can't just shoot for 20 minutes straight like with digital, because with IMAX you have to reload a new roll every 3 minutes. For some actors, that's actually a good thing. There's the story of Robert Downey Jr. protesting on a set of David Fincher, who was one of the first directors to shoot on digital. And so because the takes were too long, he collected jars of pee and Everyone hates David Fincher. put them on the set because he wanted his breaks back. Just like over in the corner and stuff. Just he would go off in your key and then you bring back. And it was like form of protest. But why does Nolan not just go digital? Digital is more compact, silent, lightweight, and cheaper, and the resolution can still get up to a modest 6K. Well, that's because there's also something else going on here when looking at the grander scheme of things, and it has something to do with how we view our movies. When I started this channel, I made a poll about whether you would prefer to watch a movie at home or in the PR टीम में जगह मिलेगी. cinema, and out of 100,000 people, only 55% said in the cinema. I checked Discord, found what you were trying to convey. Oh, okay, thank you. There you go. Oh my god, my chat is so fucking smart. So if you get something fast, it has to be expensive or low quality. It's going to be expensive or low quality. Okay, it's not going to be good if it's cheap. Right? Good can be slow or expensive, and that's why my film was extremely slow, because I was trying to make it good.
If it's gonna be cheap, then it's gonna be slow. Wait, it can't. Wait, what? Low quality, but it can't be fast. Cheap can be slow and good, but not fast. True. Completely. So yeah, thank you, Joffrey. Thank you for saving my ass. Paul, क्या हाल है मेरे भाई? Thanks for joining. मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो प्रमोशन के लिए, अपने व्लॉग चैनल में डाल दूंगा. अरे सर, थैंक यू सर. The other 45 would rather watch a movie at home. This goes to show how the movie landscape has undergone a major change since the rise of digital. When DVDs, Blu-rays, and streaming services started to become more and more popular, a lot of people actually preferred staying at home instead of going to the cinema. Combine that with the large amounts of post-production, rise of animation and CGI in movies, some film critics, including Martin Scorsese, have stated that this is not cinema anymore, but more like painting with a PC, and have become very wary. Hold on. Scorsese did not mean that when he said that. And CGI in movies, some film critics, including Martin Scorsese, have stated that this is not cinema anymore, but more like painting with a PC, and have become very. More like. अच्छा वो एक दूसरी. ओ भाई साहब ये अलग-अलग कोट्स को मिक्स कर रहा है मेरा भाई शायद. Rich people have quick orgasm but don't have good sex. All right. So basically, Scorsese said that Marvel is not cinema. I agree with him. I'm very wary of productions like Marvel movies. Who the fuck am I to agree with Martin Scorsese, possibly the greatest living director? Theme park films. They're a new art form. It's something different from films that are shown normally in theaters. But that's where Christopher Nolan steps in, because Nolan refrains from using CGI and green screens. In an age where it has become so easy to do everything in post-production, Nolan performs all his stunts in camera, meaning doing stuff for real to bring back the spectacle. You have to just bring it down to it's so much more fun to do. It's fun for the actors, fun for me. There's nothing more dispiriting than when you turn up to work and there's just a green screen with the actors in front of it. It's really, the magic's not there. So trying to do these things for real, trying to use real locations. I always prefer real locations to sets. भाई बुरा मत मानना. ठीक है भाई. You know, I avail myself. निलेश नहीं महेश. Oh, okay. महेश कौन है लेकिन? Latest digital effects technology, absolutely. But we try and always achieve what we can. मेरे प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ खास नहीं देखी जाएगी. And have as good a time as possible doing it. And he does this all while filming on the purest form of cinema, the film roll. I think there's a very real danger with watering down the theatrical experience, watering down the experience of what a film is, with that organic, larger-than-life sort of quality that the great film print has. But cinematographer Roger Deakins disagrees, and he's not the least of them all. He's known for shooting Blade Runner 2049. Wait, Kejriwal को कब arrest करा bro? Explain why ED arrested Kejriwal. Oh, they did? What the fuck? Arvind Kejriwal arrested by Enforcement Directorate. Oh my god, dude, what the fuck? 2 hours of questioning in connection with the alleged Delhi liquor policy scam case. Remember, this happened at Mr. Kejriwal's rest. Malika Hind, क्या हो रहा है आपके देश में? Reached there with search warrant and then started questioning Mr. Kejriwal. After 2 hours of questioning, Arvind Kejriwal was arrested and has been brought to the Enforcement Directorate office. He is currently in custody and will be produced in the court tomorrow, in fact on Friday. And earlier this evening, a 12-member Enforcement Directorate team landed at Mr. Kejriwal's residence with a search warrant. Remember, Arvind Kejriwal so far has dodged 9 summons by the Enforcement Directorate. Today, his arrest came just hours after the High Court denied him interim protection in the same case. So let me very quickly at this moment go across to my... अब तो ही जाएंगी 400 से बस सीट. अब क्या दिक्कत है? भैंस की आँख. मैंने जो वीडियो भेजा है वो देखना. एटलीस्ट टैग पढ़ लो. अरे भाई दिखते हैं जॉफरी, आज देखूंगा मैं. ये वाली बैंक अकाउंट्स वाली. भाई साहब, व्हाट द फक. नमस्कार, मैं रविश कुमार. चुनावी चंदे का धंधा केवल धंधा नहीं है बल्कि फंदा भी है. अभी तक हम धंधे की बात कर रहे थे. आज इसके एक और रूप फंदे की बात करेंगे कि कैसे विपक्षी दल कांग्रेस पर फंदा कस दिया गया है. कांग्रेस के खाते जब्त कर दिए गए. 1 महीने से उसके खाते जब्त हैं. वह इस चुनाव में प्रचार से लेकर उम्मीदवारों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए खर्च नहीं कर पा रही है. इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि बीजेपी कैसे इसका बचाव कर रही है. इसलिए आखिर तक देखना जरूरी है. चंदे का धंधा पर यह हमारा 15वां वीडियो है, लेकिन इसका नाम कुछ और भी हो सकता है. चंदे का फंदा भी होना चाहिए. कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर इसके असर की चिंताएं साफ दिख रही हैं, मगर ये चिंताएं केवल कांग्रेस के लिए नहीं है. 21 मार्च की सुबह बुलाई गई यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल कांग्रेस के लिए नहीं है. लोकतंत्र में यकीन रखने वाले किसी भी दल के समर्थक के लिए महत्वपूर्ण है. मोदी के समर्थकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो वोट देकर उन्हें जिताते हैं और लोकतंत्र के तरीके से चुनने का गौरव प्राप्त करते हैं. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो कहा गया, उसे लेकर मोदी के समर्थकों को भी समझना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए कि जब मैदान में विपक्ष नहीं होगा, मैदान में आने से पहले विपक्ष को खत्म या कमजोर कर दिया जाएगा, तो कैसा लोकतंत्र रह जाएगा. चुनाव में 2 पक्ष होते हैं, दूसरा पक्ष का बैंक अकाउंट बंद हो जाए, प्रचार और मीडिया से उसे गायब कर दिया जाए, तो क्या लोकतंत्र रह जाता है. मोदी समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि क्या वे ऐसा ही लोकतंत्र चाहते हैं. मतदान करने की छूट ही लोकतंत्र के होने का एकमात्र सबूत नहीं है. कांग्रेस ने जो कहा है वो इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है, और वो चिंता केवल कांग्रेस की नहीं है. 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है.
1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने छू तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स दिखाना मुझे सॉरी क्या 200 करोड़ जब इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस है, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज़ ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर कांग्रेस का खाता जब्त कर या सरकार क्या संदेश देना चाहती है? यही कि किसी को 400 सीटें लानी है, आप मैदान से हट जाइए, हमें सारी सीटें सौंप। ट्रू, हाँ ट्रू। बीजेपी कैन व्हेन इज एक सेकंड, बीजेपी के अलावा जीतेगा कौन? डज एनीवन रियली थिंक कि बीजेपी नहीं जीतेगा? चलो गुड नाइट, गुड नाइट जैनम। हु सपोर्ट्स केजरीवाल का पोल डाल। आई डोंट थिंक मेनी पीपल वुड सपोर्ट। ऑलराइट, लेट्स अभी तो कांग्रेस की बात नहीं दूसरा होना चाहिए, पर इसका मुझे आंसर ऑलरेडी पता है। This is the real question. दीजिए, क्या इस सिद्धांत पर यह चुनाव हो रहा है? यह पाकिस्तान का चुनाव है या हिंदुस्तान का? 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार लेवल प्लेइंग फील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने उसी दिन के वीडियो में कहा था 2024 का चुनाव वो चुनाव है जिसमें बराबरी की बात तो हो रही है मगर बराबरी दिखाई नहीं देगी, और यह देखना, इसे सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। कांग्रेस पार्टी के 11 बैंक खाते बंद कर दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उस लेवल प्लेइंग फील्ड की सच्चाई बता दी, धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है, और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। यह सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है मुकुल रुक जा, ठंड रख थोड़ी सी। तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं 99% वोट। Okay, Aditya, you are happy about Kejriwal being arrested, but you are sad about Elvish Yadav being arrested. Can you explain to me that? Black and white. What? मिल रहा है ऐसा, आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास अलग अलग सोर्स से 12,930 करोड़ का। भाई पहले पढ़ लो फिर बोलना। नहीं, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, who gives a shit man? और मैंने पढ़ के तो बोला घर से उठा लिया केजरीवाल को। What the fuck are you talking about? चंदा है या वो चंदा है जो ज्ञात सोर्स से मिला है। इसमें चुनावी चंदे के बॉन्ड का 8,251 करोड़ रुपया है। चुनावी चंदे के लिए कुल जितने भी बॉन्ड क्या करा है दोनों ने, oh my god बुनाए गए हैं, खरीदे गए हैं, उसका 56% हिस्सा बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को केवल 11% मिला है। इतना अंतर है, यही इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड के दावे को झुठला देता है। एक पार्टी धुआंधार प्रचार करेगी, एक पार्टी प्रचार में नजर नहीं आएगी। कांग्रेस के बैंक खाते हजारों करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देने के लिए बंद नहीं किए गए हैं। कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि मात्र 14,90,000 की राशि है और यह पैसा कांग्रेस के सांसदों ने कैश में दिया। इसका हिसाब देने में देरी हो गई, मगर क्या यह इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा अपराध है कि ऐन चुनाव के बीच विपक्षी दल का पूरा खाता बंद कर दिया जाए और उसे चुनाव में लड़ने लायक नहीं रहने दिया जाए? जब जनता में इतनी लहर है, 400 सीटें बीजेपी को आ रही हैं, तब भी विपक्षी दल के खाते क्यों बंद किए जा रहे हैं? मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स। अरे नहीं भविष्य में अभी मजाक में बोल रहा था उसको ऐसे। भाई साहब टाइम आउट पे मत जाया करो भाई, मैं मजे ले रहा हूँ यार। भाई फैक्ट पे बता करो किसने क्या किया है। मेरे भाई तुझको क्या फैक्ट पता है एल्विश यादव के बारे में? बार बार तू आके ये बोलता है मुझे कि सारे ये कह रहे हैं, सारे वो कह रहे हैं। आर दोज फैक्ट्स? इज दैट हाउ फैक्ट इज दैट व्हाट अ फैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी? Jeffrey, what's about AAP, people getting jailed? डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करें, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को भी मिल गई है। आप सब लोगों के आगे आप जरा देखिए, ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस हमारे पास में आया, और इसको लेकर के दिस इज लव अनोइंग राहुल गांधी। I don't know. आगे आने वाले समय के अंदर
फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। भाई न्यूज़पेपर जो आएगा वही तो बताओगा भाई मेरे। हाँ मेरे भाई, लेकिन अगर तू राइट वालों को ज़्यादा फॉलो करता है तो यू माइट बिलीव इन सोरोस मीडिया, है ना, या फिर वेस्टर्न फंडेड मीडिया, या फिर ध्रुव राठी जैसे फेक रिपोर्टर्स। अगर तू लेफ्ट में ज़्यादा बिलीव करता है, यू माइट बिलीव इन गोदी मीडिया, राइट विंग के फेक मीडिया। मीडिया को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, और देर आर गुड रीजन्स मीडिया को ना ट्रस्ट करने का। लाइक इवन भाई रवीश के तो सपोर्टर्स ही बहुत कम है राइट पे, तो आई डोंट थिंक एनीवन सपोर्ट्स रवीश। तो या एनीवेज, इससे ज़्यादा क्या करेंगे बीजेपी वाले? भगवान मर गया तुम्हारा कब जागेगा। अरे अरे मर गया क्या तुम्हारा कब जागेगा? लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। कभी किसी ने भी द सेम थिंग हैपन इन बंगाल सीन एजेस जब से टीएमसी ने लिए हैं। ऑलराइट, यू आर राइट ब्रो, ऑलराइट। पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? यह चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का है। क्या 14 लाख रुपए के हिसाब के लिए किसी बड़ी विपक्षी पार्टी का खाता लेफ्ट और राइट का मतलब बता दो पहले, जिनको ना पता हो। भाई हिस्ट्री तो मैटर नहीं करती लेफ्ट और राइट की। आई थिंक फ्रांस कहीं से आता है सारा। बेसिकली ऑन द राइट आर द पीपल जो कि ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, जो कि ट्रेडिशंस वगैरह को अपहोल्ड करना चाहते हैं। ऑन द लेफ्ट आर द पीपल हु आर मोर लिबर्टेरियंस, मोर लिबरल्स, जो कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस को ब्रेक करके नए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना चाहते हैं। हमको ज़रूरत दोनों की है, लेफ्ट की भी और राइट की भी। बट और एक्सट्रीम्स दोनों में से किसी के भी अच्छे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशरी ही बताएगा अब क्या होगा। दया ही बताएगा अब क्या होगा। और जब्त किया जा सकता है। हजारों करोड़ के चुनावी चंदे का धंधा सामने आ गया, उसे कई अखबारों ने कवर तक नहीं किया। क्या आपको शक नहीं हुआ कि किसका अपराध आपसे छिपाया जा रहा है, किसका घोटाला आपसे छिपाया जा रहा है? और यहाँ एक विपक्षी दल का खाता बनकर कानून लागू करने का स्वांग रचाया जा रहा है। यह बेहद खतरनाक है। क्या यह हत्या का अपराध है जिसकी सजा नहीं टाली जा सकती है? क्या आपको यह लोकतंत्र की हत्या का खेल समझ नहीं आ रहा? खुद मोदी सरकार 2016 में काला धन वालों को छूट देने के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी। कहा तो उन्हें जेल भेजना था, लेकिन सबसे कहा गया कि काला धन जमा करो, थोड़ा ज्यादा टैक्स दो और बाकी पैसे से ऐश करो। 2021 के अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के बाद अगर 3 साल गुजर गए हैं तो टैक्स फाइल नहीं खोली जाएगी। नए नियम से पहले आयकर टैक्स फ्रॉड या चोरी के संदेह पर 6 साल तक पुराने मामले खोलकर फिर से जांच शुरू कर। जॉफरी ने सबसे पहले कर दिया लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स। वैसे तो सबको पता है, सारी ऑडियंस ज्ञानी है। सकता था 2021 में इस मियाद को घटाकर 3 साल कर दिया गया, जिस मामले में 50 लाख या उससे अधिक की टैक्स चोरी के साक्ष्य घोटाला आपसे छिपाया करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? यह चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का है। क्या 14 लाख रुपए के हिसाब के लिए किसी बड़ी विपक्षी पार्टी का खाता जब्त किया जा सकता है? हजारों करोड़ के चुनावी चंदे का धंधा सामने आ गया, उसे कई अखबारों ने कवर तक नहीं किया। क्या आपको शक नहीं हुआ कि किसका अपराध आपसे छिपाया जा रहा है, किसका घोटाला आपसे छिपाया जा रहा है? और यहाँ एक विपक्षी दल का खाता बनकर कानून लागू करने का स्वांग रचाया जा रहा है। यह बेहद नहीं, मैं कमेंट करता। ऑलराइट, एक तो ये मतलब बहुत इरिटेटिंग है। ओके, खतरनाक है। क्या यह हत्या का अपराध है जिसकी सजा नहीं टाली जा सकती है? क्या आपको यह लोकतंत्र की हत्या का खेल समझ नहीं आ रहा? खुद मोदी सरकार 2016 में काला धन वालों को छूट देने के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी। कहा तो उन्हें जेल भेजना था, लेकिन सबसे कहा गया कि काला धन जमा करो, थोड़ा ज्यादा टैक्स दो और बाकी पैसे से ऐश करो। 2021 के अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के बाद अगर 3 साल गुजर गए हैं तो टैक्स फाइल नहीं खोली जाएगी। नए नियम से पहले आयकर टैक्स फ्रॉड या चोरी के संदेह पर 6 साल तक पुराने मामले खोलकर फिर से जांच शुरू कर सकता था। 2021 में इस मियाद हेलो मोटिफायर, हाउ आर यू मैन? थैंक्स फॉर जॉइनिंग। ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नानू ने टीवी पर न्यूज़ चला रखा हो। घटाकर 3 साल कर दिया गया, जिस मामले में 50 लाख या उससे अधिक की टैक्स चोरी के साक्ष्य पाए जाएंगे उसी मामले को आयकर विभाग दोबारा खोलेगा। यह सब छपा है, आप पढ़ लीजिए। हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी। उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई है। 106% की। कितना I'm good. Is this your first time on the stream? The E in Nirmala stands for economics. 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई है। ये क्वांटम हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है। इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 10.25 करोड़ का लेन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया।
वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दैट्स द फकिंग पॉइंट मुकुल। और तेरे वेयर का दूसरा ई कहाँ है? आपको वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है, ये कहां का लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई, मीडिया की भी लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। उसका क्या होगा? उसको पता नहीं यार क्या होगा, जिसका सिर्फ फूटा था भविष्य। लेकिन आप रहेंगे ना हम रहेंगे। आयकर उल्लंघनों में रियायतें मिलती रहती हैं, जुर्माने भी लगते हैं, लेकिन क्या यह सही है कि बीच चुनाव में एक विपक्षी दल का सारा पैसा जब्त कर लिया? ऑलराइट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री? क्या चल रहा है? कांग्रेस के खाते बंद है, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट है, इलेक्शन आ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। यू नीड अ गुड थंबनेल। ट्रू विक्रम, ट्रू। थंबनेल बना लेंगे यार, क्या हो गया? थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ यार 1-2 दिन तक। व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर? वी आर जस्ट डिस्कसिंग शिट यार। बाय द वे, people send stuff on Discord. You can join. The link is in the description if you like what you see. We talk about different stuff. We talk about all of these things and more. इसका फर्स्ट वोट है 2024 में। किस किस का फर्स्ट वोट है? देन गिव हिम अ न्यू थंबनेल और डिस्कॉर्ड। मैं बना दूँ थंबनेल? जिसका मन करे थंबनेल बना दो। अगला थंबनेल मतलब हाँ डिस्कॉर्ड, यू नो व्हाट, फक ऑफ। इफ यू वांट टू मेक अ थंबनेल, ओह दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू मी, आई विल क्रिएट अ न्यू चैनल या फिर न्यू टेक्स्ट चैनल। यहाँ पर कैसे बनाते हैं? डिस्कॉर्ड पे कैसे बनाते हैं? क्रिएट टेक्स्ट चैनल, ये रहा ना टेक्स्ट चैनल, थंबनेल्स। तो एनीवन कैन सेंड मी अ थंबनेल हियर, ऑलराइट? दिस इज नॉट अ प्राइवेट चैनल, दिस इज टेक्स्ट चैनल। यप, हाँ, सो यू कैन सेंड इट हियर डिस्कॉर्ड पे। लेट्स बिगिन पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा वो सामान आता है। सामान थंबनेल्स में जस्ट सेंड इट, राइट? पैसे दोगे ना? नहीं, पैसे नहीं दूंगा। इफ समवन इज मेकिंग अ शिटी फनी थंबनेल, आई विल पुट इट अप, नॉट अ गुड वन। अच्छा वाला तो मैं ही बनाऊं, कह रहा है। सो या 7 साल और 30 साल पुराने मामले में नोटिस। अरे वो रिप्लाई नहीं कर रही थी तो लिखा है निकेश, बीच में ना बोला कर। फक ऑफ मुकर। देन गिव हिम अ न्यू थंबनेल ऑन डिस्कॉर्ड। ट्रू, मैं बना दूंगा थंबनेल। तू मुझे क्यों बता रहा है? तू मुझे क्यों बता रहा है? क्या? मेरे लिए राइट भेजा जाए और जवाब मांगा जाए। नियमों का हवाला देने वाली बीजेपी यह बताना चाहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो हुआ सही हुआ। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा कि जनता कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रही है, उसे ऐतिहासिक हार का डर है। उनकी चोटी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं के खिलाफ रुदन क्रंदन करने लगे। वे अपनी वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे बौद्धिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय कांग्रेस भारत की संस्थाओं पर आरोप लगा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट और आयकर ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। कहा है कि बकाया टैक्स चुकाइए। पार्टी ने नहीं चुकाया। जिस पार्टी ने हर सेक्टर में लूट की है, हर राज्य में लूट की है, इतिहास के हर मोड़ पर लूट की है, वो अपने आप को वित्तीय रूप से असहाय बता रही है। यह हास्यास्पद है। सॉरी How do I pin it? Let's see if someone sends it. Or maybe someone doesn't. Who knows? So what all do you do on your channel? यार, we discuss everything. We discuss things. बात करते हैं हम बैठ के। हम कभी गेम्स खेलते हैं, कभी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कभी पॉप कल्चर की बात करते हैं, कभी स्कैम्स की बात करते हैं। बस बात ही करते हैं, बात से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। दिक्कत ये है। ओके, क्या? हाँ, ये सब के बाद कांग्रेस को डर है। 250 ग्राम का वेट पर दीपक की पिक भी लगा देना प्लीज़। भाई नीलेश, एक आइडिया है। सबको बोल 30 सेकंड्स का कोई व्लॉग बना के भेजो, फिर सबको ऐड करके अपलोड कर दे एंड ऐड लेस योर क्रिएटिविटी है। डू समथिंग इंटरेस्टिंग। सो डू ऑन चैनल। भाई इलेक्शंस में क्या होगा इस बार? कोई जेल में है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई। आदित्य, मलिक रिप्लाई नहीं कर रही तो ब्लॉक कर दे, साड़ा मत मुझे, गाली दे दूंगा। फक ऑफ मुकुल। अरे कुछ पूछो तो। रिप्लाई किस चीज़ का? अच्छा, जॉफरी फोस्ट, ये तेरा जोक। जॉफरी का क्या जोक था? मुकुल होमवर्क के
आप इस बयान को ठीक से समझिए। ठीक है कि कांग्रेस हार जाएगी, जनता उसे ठुकरा देगी। भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर भी लगे। कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हार गई और कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव के बीच एक पार्टी का फंड सीज कर दिया जाए। चुनावी चंदे के बॉन्ड में भांति भांति की लूट की खबरें छप रही हैं, गंभीर से गंभीर संदेह जताए जा रहे हैं। तो क्या इस आधार पर बीजेपी का खाता बंद कर दिया जाए, ईडी की रेड हो जाए? क्या यह नहीं दिखता है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, गलतियां निकाली जा रही हैं खोज कर और उसे लेकर केस बनाया जा रहा है? 1994-95 और 2017-18 के मामले में इस वक्त बैंक खाता फ्रीज करने को एक लोकतांत्रिक पार्टी सही ठहरा रही है और उसके समर्थक भी चुप नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर भाई तूने एमपी के इलेक्शन के बारे में देखा? क्या देखा भाई? काटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। आई थिंक इट्स क्लियर व्हाट ही मेंट बाय इट। मतलब इफ ही इज राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता किस तरीके से सीज कराएगा। मे बी लीगल लूप होल्स व्हाटएवर, ऑफ कोर्स इसी तरीके से करेंगे, राइट? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर व्हाट डज ही मीन बाय दैट। कोई अपना ओ भाई मुझे डेजा वो हो गया, बहुत तगड़ा डेजा हुआ अभी मुझे जब ये बात हुई ना, जो कांग्रेस का अकाउंट सीज है, केजरीवाल जेल में है। मुझे बहुत तगड़ा डेजा हुआ है। कोई अपने पार्क या मोहल्ले की वीडियो बना देगा, फेस नहीं दिखाएगा, कुछ ओपिनियन तो दे चाहे डिनाई कर। हाँ मुझे वही था यार कि आइडेंटिटी आधे से ज़्यादा चैट दिखाना नहीं चाहती, विच आई थिंक विच इज ग्रेट। सो हाँ ठीक है, सो एनीवन कैन सेंड एनीथिंग। इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको ये तक अधिकार है और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? यह सारे तर्क कुतर्क की श्रेणी में आ सकते हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, जेपी के आंदोलन से निकले नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का खाता जब्त हुआ है, देश का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि ऐलान है कि अब चुनाव ऐसे ही होगा। बराबरी का नया सिद्धांत लागू कर दिया गया है। एक पार्टी हजारों करोड़ खर्च करेगी और एक पार्टी का बैंक खाता बंद रहेगा। यह भी कमाल है कि भारत की जनता इसमें गलत नहीं देख रही होगी। उसे नहीं दिख रहा होगा कि इन तर्कों के पीछे लोकतंत्र को खत्म करने वाला कौन सा चेहरा छिपा खड़ा नजर आ रहा है। क्या 14,90,000 नीलेश थक जाएगा बेचारा ओपिनियन दे के। का हिसाब न मिलना इतना बड़ा अपराध है कि चुनाव के बीच उसका खाता बंद कर दिया जाए। फिर तो हर आदमी के टैक्स की फाइल खोलकर 500 से 1000 रुपए के मामले में लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। क्या उसी दिन का इंतजार हो रहा है? बल्कि कितने लोगों को जेल में डाला गया इसी सरकार के दौर में। 5-5 साल लोग जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला तो जमानत देनी पड़ी। क्या रविशंकर प्रसाद के लोकतंत्र की कल्पना में जीएन साईं बाबा के साथ जो हुआ वो आता है? बिना किसी सबूत के एक विकलांग प्रोफेसर को 4 साल से ज्यादा समय। नीलेश भैया मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा 14 से कम के हैं उनकी फ्रीडम ऑफ मूविंग अराउंड एंड बुढ़े जो 65 से ज़्यादा हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रिमूव कर देनी चाहिए। क्यों यार? व्हाट डू यू मीन फ्रीडम ऑफ मूविंग अराउंड? मतलब शुड दे बी लॉक्ड इन अ रूम? एंड 65 से ऊपर के लोग हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मोदी Dude, what the fuck are you talking about? Our Prime Minister is 73 years of age. Might have... सत्तर का है वो। Alright, calm down. तक जेल में रखा गया। क्या वो रविशंकर प्रसाद के लोकतंत्र का चांद है, सूरज है, मोरपंख है? ये मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को ईडी द्वारा पूरक आरोप पत्र दायर करके आरोपी व्यक्ति कितने का है यार पता है? आई अंडरस्टैंड बट 53 कुछ। ऑलराइट, खुद अपलोड कर नहीं रहा। आई लव्ड व्लॉग वाला नीलेश। ऑलराइट, आई हेट लाइव वाला नीलो। व्हाई Mukul, why? Where? Do you actually hate me? आदित्य, अगर तू 14 का है तो तेरे को पढ़ना चाहिए, एलविश के पीछे नहीं लगना चाहिए। अच्छा आदित्य 14 का है भाई, जो 14 का है नहीं व्यक्तियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और जांच जारी रखने के अभ्यास की निंदा की।
जिससे ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ईडी द्वारा अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी अपनाई जा रही है, सुनिए ध्यान से, जो परिपाटी अपनाई जा रही है वो अदालत को परेशान कर रही है और वह इस मुद्दे पर विचार करेगी। ये सारे आदेश यही तो कह रहे हैं कि नियमों और प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। कौन जानता है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम लोग किस लिए जेल में डाले गए हैं। बीजेपी नियमों का हवाला दे रही है, आपातकाल की याद दिलाने चली आती है। लेकिन अभी कर्नाटक के कांग्रेस नेता के साथ क्या हुआ, जिस केस में उन्हें 1 महीने के लिए जेल भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग के उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया डीके शिव कुमार के केस का। इसलिए जब बीजेपी नियमों का हवाला दे, All right, we've got one thumbnail. All right, this is not bad actually. Nice work. बस पास होते रहो, पढ़ के कुछ नहीं होता। That's actually not true, Aditya. That's not true. से देखने की जरूरत है। बीजेपी नियम कर रही है, कोर्ट कर रही है, सभी को पता है। जब वही कोर्ट के फैसले पलटकर उससे सवाल करते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक कहा कि नहीं कहा कि जानकारी दीजिए, एक जानकारी दीजिए। तब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट पहुंच गया कि जून में बताएंगे, 136 दिनों का समय दीजिए। जब डांट पड़ी, फटकार पड़ी तो 1 दिन में जानकारी दे दी गई। ये डिफॉल्ट किसने किया? जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन रविशंकर प्रसाद ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, फैसले का अध्ययन करेंगे यह कहकर निकल गए। आज रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं उन्हें न्यायपालिका पर गर्व है, लेकिन उस दिन क्यों नहीं कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार के एक लाए कानून को अवैध और असंवैधानिक कहा था। होता बस करना आना चाहिए, पहली बारी ट्राई करा है। दैट्स नाइस एक्चुअली। भाई 14.90 lakhs के लेट फाइलिंग का 210 करोड़ का फाइन, ऑफ कोर्स यस आई गेट इट जाफरी। भैया जिस आदमी ने कुछ गलत नहीं बोला वो जेल में है, एंड एक मैं हूँ जो बहुत किस आदमी ने कुछ गलत नहीं बोला भाई? कौन सा वाला? यू मीन एलवेश यादव? क्योंकि औपचारिक टिप्पणी इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद बताई जाएगी। Since the judgment is of a constitution bench running into hundreds of pages, it requires a comprehensive study and thereafter a structured reply. तो ये आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ, बाकी होता है, यही तो देश। क्या कमाल की बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। पहले दिन से लेकर आज तक किसी ने नहीं कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर उन्हें गर्व है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने कहा? क्या सरकार के किसी मंत्री ने कहा? वित्त मंत्री ने कहा? क्या सही में यह फैसला उनके लिए गर्व करने लायक है जिसे कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक कहा है? प्रधानमंत्री ने तो आज तक चुनावी चंदे के बॉन्ड पर नहीं बोला। यह कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, उसे कैसे न्यायालय के इस फैसले पर गर्व हो सकता है? दर्जनों मीडिया रिपोर्ट अब सामने है, कितने सवाल उठ गए हैं मगर कोई जवाबदेही नहीं। उल्टा प्रचार हो रहा है कि प्रति सांसद बीजेपी को कम चंदा मिला। यह कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी को 8,251 करोड़ का चंदा चुनावी चंदे के बॉन्ड से मिला हो, जिस पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 75% चंदा मिला हो, वह यह भी साबित कर दे रही है कि उसे कम चंदा मिला है? क्या यह विचित्र नहीं है? क्या इस देश में सारे लोग गणित में फेल होते हैं? यह हेडलाइन है दैनिक जागरण, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का बयान है। यह झूठ है कि बीजेपी को मैं परेशान है, रवीश कुमार परेशान है यार। मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, अपनी एक्स को स्नेक नहीं बोला। सही बात है, वो जैसी भी थी बहुत खूब। उससे ज्यादा चंदा मिला। कितनी विचित्र बात है कि जिस पार्टी को चुनावी चंदे के बॉन्ड से सबसे अधिक पैसा मिला हो वही पार्टी कह रही है उसे ज्यादा नहीं मिला। जिस पार्टी को 56% चंदा मिला हो वही कह रही है ज्यादा नहीं मिला। भाई तो टीचर वैगनार से आते हैं, वैगन से क्यों नहीं? जी वैगन से क्यों नहीं? डू यू थिंक टीचर्स आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द वर्ल्ड? Out of 75% people who hate BJP, only 55% support आप। Alright, मुकुल yep. इतना पढ़ने के बाद डू यू थिंक टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं? ओके, यू आर रॉन्ग मेरे भाई। लेते टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। कायदे से अखबार को सवाल करना चाहिए था कि यह कैसा दावा है, मगर जो बयान में गलत बोला गया उसे अखबार ने सही की तरह छाप दिया। अमित शाह के बयान को सच की तरह छाप दिया गया। इसमें कोई गलती नहीं, अखबार ये लाइन ले सकता है, लेकिन एक आम पाठक क्या समझेगा? क्या उसे बताया गया है कि जिस पार्टी को 100 में 56 रुपए मिल रहे हो वो कैसे कह सकती है कि सबसे कम मिला? यही हो रहा है कई अखबारों में। चुनावी चंदे के बॉन्ड की खबरें या तो गायब हैं या आधी अधूरी छप रही हैं। जल्दी ही ये सभी अखबार बीजेपी के विज्ञापनों से भरे नजर आएंगे। आचार संहिता से पहले तक यही अखबार मोदी सरकार की योजनाओं के विज्ञापन से भरे हुए थे। विपक्ष को पहले ही कई महीनों से गायब किया जा चुका है। देश की जनता, एक आम नागरिक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं। तो पॉलिटिशियन को क्या बोलोगे? ये सबसे चुतिया आर्गुमेंट है आदित्य। उनका जॉब होता है एजुकेट करना। भाई होते हैं बहुत टीचर। नहीं मेरे भाई, बहुत टीचर बहुत एजुकेटेड नहीं होते। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वही कांग्रेस को 11%। बहुत कम टीचर होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड। बहुत कम टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड जो होते हैं। जैसे कि बहुत लाइक ओवरऑल ऑन एवरेज डॉक्टर्स विल बी मच मोर एजुकेटेड देन टीचर्स, राइट? उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। बट अगेन इवन डॉक्टर्स में भी बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं अपनी फील्ड में, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अपनी फील्ड में। मोस्टली डॉक्टर्स, यू नो, इट्स अ बेल कर्व एग्जिस्ट एवरीवेयर। बेल कर्व होता है भाई मेरे बेसिकली, विच मीन्स कि जो एवरेज होते हैं वो हमेशा
दिस इज ट्रू। नॉर्मल लोग यहाँ पर होते हैं। सी, ये मान लो ये सबसे कम पढ़ा हुआ, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ। नॉर्मल लोग यहाँ पर होते हैं, राइट? सबसे कम पढ़े हुए बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े हुए बहुत कम होते हैं किसी भी फील्ड में। एंड ये पढ़ा हुआ मैं बहुत ही फ्रीली यूज़ कर रहा हूँ वर्ड। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा डम लोग बहुत कम होते हैं। नॉर्मल लोग हमारे तुम्हारे जैसे यहाँ कहीं होते हैं बेसिकली। एक सेकेंड एलिजिटली, तुम्हारी मम्मी भी टीचर है ना? हाँ, मेरी मम्मी टीचर है। दैट डजंट चेंज द फैक्ट। उन्हें टीचर बनना पड़ता है क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती इसलिए, पर वो बहुत पढ़े हुए होते हैं। आदित्य क्या बात कर रहा है मेरे भाई? मतलब आई यू बेसिंग दिस ऑन समथिंग? भाई बीजेपी तो डिक्टेटरशिप करने लग गई यार। अब्दुल भेजा पड़ेगा पाकिस्तान से। फक ऑफ। ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं मेरे भाई। ही मिले हैं और ये वो अच्छा, पैसे ऐसा नहीं है मेरे भाई। ओके। जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। Dude, Rahul Gandhi is fucking pissed. You can clearly see it. आदित्य को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, I got it. भाई प्रूफ चाहिए क्या? हाँ भाई, अगर है तो बहुत बढ़िया होगा। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसर्स से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। यह मामला बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं की चुप्पी वाकई हैरान करती है। एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा मुद्दा। मेरा ही टीचर है मैथ्स का। आई विल स्टॉप यू राइट देयर। इट डजंट साउंड लाइक यू आर गिविंग मी प्रूफ आदित्य। दीप सोनीपत को कुछ नहीं होगा भाई, ये वादा है। फक ऑफ मुकुल, फक ऑफ होना चाहिए। मगर भारत का गोदी मीडिया जानबूझकर इससे अनजान बना हुआ है। कायदे से इसे लेकर देश में बहस होनी चाहिए थी। अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपनी चाहिए थी। इसके खतरे को भारत के पत्रकार नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बीबीसी, लेमॉर्ड, सीएनएन, अल जजीरा समेत कई अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि भारत के अखबारों ने छापा नहीं, मगर क्या जनता को जोर शोर से बताया गया कि विपक्ष का खाता बंद? अरे भविष्य सारे थंबनेल में लाइक, शुड आई रिप्लेस दिस विद माय फेस और नॉट? दीस आर नाइस एक्चुअली। किया गया है तो यह चुनाव कैसे होगा? इस चुनाव में बराबरी कैसे रहेगी? क्या आपको भारत के मीडिया से पता चल रहा है कि इतनी बड़ी खबर है और इस खबर के खतरे क्या-क्या हो सकते हैं? This issue affects not just the Indian national party. को जोर शोर से बताया गया कि विपक्ष का खाता बंद कर दिया गया है तो यह चुनाव कैसे होगा? इस चुनाव में बराबरी कैसे रहेगी? क्या आपको भारत के When it says 25 minute frozen by tax department ahead of elections. भाई फिर नंबर 2 बात करा दूंगा भाई। भाई मेरे एक सेकंड, I'll try not to be I'm trying. All right. Aditya, what you're telling me is something. I fucking forgot the word. What is it? Anecdotal? नहीं. If account not necessarily true or reliable because based on a personal account rather than facts or research. True. There you go. That's the fucking word. I'm so sorry. Aditya, so what you're giving me is something which is an anecdote. या फिर इसको अगर anecdotal evidence बोलेंगे, ठीक है? अब इस चीज़ को fact या फिर proof नहीं माना जाता. Once again, it is not necessarily true or reliable because based on personal accounts rather than facts or research. तो जो तू मुझे बता रहा है, तेरा कोई टीचर है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ग्रेट, गुड फॉर हिम, बट दैट्स अगेन अ पर्सनल अकाउंट, हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. इट इज़ नॉट रिलाइंग ऑन फैक्ट्स और रिसर्च. इंडियन पॉलिटिक्स इज शिट. दिस इज नॉट अ गुड लुक, दैट्स फॉर श्योर. मीडिया से पता चल रहा है कि इतनी बड़ी. अरे भाई, तूने कभी सुना है एक स्टूडेंट अगर 12th में है तो वो 10th के बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, उस 12th के बच्चे को भी टीचर ही बोलेंगे? ट्रू. खबर है, इस खबर के खतरे क्या-क्या हो सकते हैं? मिस जॉब की चैट मिस, आई थिंक अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, वेयर पीपल एक्सेप्ट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स और प्रोफेशनल जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज दे पे मोर. नहीं, आई डोंट थिंक ही मीन्स दैट. तो
issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being... भाई तो रॉन्ग भी प्रूफ नहीं होता तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं यार देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये एक पर्सनल अकाउंट देना प्रूफ है नहीं, ना कोई चीज़ सच होने का ना कोई चीज़ गलत होने का। फॉर एग्जांपल तो मुझे कह देता है कि भाई ड्रंक ड्राइविंग दिक्कत है इंडिया में, कि लोग दारू पी के चलाते हैं, एक दूसरे को उड़ा देते हैं। मैं कहूँ मुझे तो कभी किसी ने नहीं उड़ाया, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो गलत है। तो समझ रहे, दिस इज़ नॉट अ प्रूफ, दिस इज़ एनेक्डोटल जो मैं कह रहा हूँ। अगर तू कहता है कि भाई ड्रंक ड्राइविंग इशू है इंडिया में एंड हेयर्स द रिसर्च, इतने लोग गए हैं, ठीक है, देन यू आर बैकिंग योर क्लेम विद अ रिसर्च। पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर शिट। मुकुल वादा नहीं भूलना भाई, मुसल फक ऑफ मैन की जुबान है तेरी। I don't know what the fuck you guys are talking about. आज कॉड वॉरफेयर मोबाइल लॉन्च हुई थी टट्टी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कॉड मोबाइल। ओह यार मुझे खेलनी चाहिए थी ना, मतलब व्यूज आ रहे थे ना। हेलो चेस्टोस, हाउ आर यू मैन? being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. विपक्षी दल का बैंक खाता जब्त हुआ है, सबको जेल में भेजकर बैंक खाते जब्त कर। She sounds like she's about to cry. अरे वैसे हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है वैसे। ट्रू ड्रंक ड्राइविंग इलीगल कब हुई? चुनाव एक खराब नाटक से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा, वो भी भारत का। चुनाव खुले मैदान में होना चाहिए, बराबरी से। ये भारत है, उसका लोकतंत्र है। तुम्हें पता है एक्चुअल में जब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इलीगल हुई थी, Any attempt to restrict drinking and driving here is viewed by some as downright undemocratic. He's kind of getting confident when a fella can't put in a hard day's work, putting 11 अमेरिकन भी चल रहे हैं साले, ड्रिंक एंड ड्राइविंग करने से रोक रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक। भाई अमेरिकन की फ्रीडम अलग है। Any attempt to restrict drinking and driving here is viewed by some as downright undemocratic. He's kind of getting confident when a fella can't put in a hard day's work, put in 11, 12 hours a day, and then get in your truck and at least drink 1 or 2 beers. They're making it laws where you can't drink when you want to. You have to wear a seatbelt when you're driving. And pretty soon we're going to be calling this country. She goes, you can't drink when you want to. You gotta put a seat belt on when you're driving. Pretty soon this is gonna be a communist country. फरीदाबाद गुड़गांव में तो लीगल है पर alright, हर जगह है बेशर्म लोग। True. You can't drink when you want to. तुर्की नहीं है और ना पाकिस्तान है। क्या भारत अब तुर्की से सीखने लगा है? 2023 जनवरी में तुर्की उच्च न्यायालय ने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की फंडिंग को निलंबित कर दिया, उसके खाते फ्रीज कर दिए गए। एचडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 6 महीने बाद आम चुनाव होने वाले थे और विपक्षी दल का बैंक खाता बंद कर दिया गया। आरोप लगा दिया गया कि मुख्य विपक्षी दल तुर्की सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने वाली कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की राजनीतिक इकाई बन गई है। बस पार्टी को आतंकवादी घोषित कर अकाउंट बंद कर दिया। कम्युनिस्ट को ब्लेम करना है इसको। लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले कोर्ट ने अपना फैसला पलटा और पार्टी के अकाउंट से पाबंदी हट गई। 1 महीने से कांग्रेस का खाता जब्त। कितना समय कांग्रेस का चला गया वो प्रचार में पिछड़ गई। 2019 में रूस में भी विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी के कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए। You can't have sex without the consent of the partner. What the fuck happened to America? OMG. When you had your first drink. उस दौरान नवाल्नी I don't drink वैसे। जेल में थे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए उनके खाते बंद किए गए। 2024 के चुनाव से कुछ दिन पहले ही नवाल्नी की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। दिसंबर 2019 में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने विपक्षी नेता शहबाज शरीफ की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। उस समय इमरान खान सत्ता में थे, आज जेल में हैं। आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार पर भी लोकतंत्र विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। क्या यह ऐसा अपराध है जिसका हिसाब चुनाव के बाद सवाल है कांग्रेस का खाता बनकर क्या इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है? अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, आप सुन रहे होंगे। ऐसे नहीं पूछ रहा था जॉफरी से। ऑलराइट, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है, इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी चीज़ ग्रिल्ड वेज बर्गर विद चिकन विंग्स। नहीं यार मैं अब सोऊंगा जाके, कल सुबह शूट है। 7:30 तो नहीं 8 बजे मुझे जाना है, तो 7 बजे तो उठना है। नीलेश मेकआउट भी नहीं किया? नहीं भाई मैंने कभी नहीं करा यार कुछ भी। ruthless in dealing because majority ऐसा नहीं करती। अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी ruthless। क्या शूट है? जस्ट फकिंग यू नो बुलशिट शूट्स। ऐसा अपराध है जिसका हिसाब चुनाव के बाद नहीं हो सकता था। सवाल है कांग्रेस का खाता बनकर क्या चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है? पूछा जाना ही चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? विपक्ष की पार्टी के बैंक वर यू ट्राइंग टू राइट? मेरे को भी लगता है झूठ बोल रहा है। जब्त करने से क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है? कहां तो बीजेपी को कहना चाहिए कि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए।
लेकिन 14 लाख रुपए के हिसाब के लिए विपक्षी दल का खाता जब्त कर नियमों का हवाला दिया जा रहा है। नियमों से ही लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इस धंधे को ठीक से समझिए। जितना दिख रहा है उसके पार जाकर देखिए। चुनाव मैदान में नहीं, जनता के बीच में नहीं, पर्दे के पीछे निपटाया जा रहा है। एजेंसियों के छापों के बाद और छापों के डर से कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपया चंदे में दे रही हैं और उन्हीं एजेंसियों के आदेश से, उनके इस्तेमाल से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सभी 11 बैंक खाते इनवर्स आ गया नीलेश जेटली। नहीं यार, मैं कैसे काम नहीं करता। मैं आई ओनली वर्क विथ फ्रेंड्स, यू नो, सो या लैग लग के देख ले है पॉल बियर। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है मैं भूल गया, शायद बहुत सारे लोग हिता है यहाँ। एमएलए एमपी पीएम होता है क्या? फ्रूट बियर दारू नहीं होती। सीज कर दिए गए। आप किसी पार्टी के समर्थक हो, वोट किसी को देते हो, क्या आप ऐसा चुनाव देखना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता जेल में हैं, जो नहीं है उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खाते जब्त हैं? क्या इस देश की जनता भी लोकतंत्र को खत्म कर देने के अभियान में शामिल है? क्या उसने भी तय कर लिया है कि भारत के लोकतंत्र का जीवन अब बिना विपक्ष के होगा? और क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि उसी के लिए कितना खतरनाक होगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरे अच्छा, केजरीवाल क्यों जेल में? एक बार ये पढ़ता हूँ फिर चलते हैं। आज थोड़ा सोना है जल्दी, एज आई सेड स्टॉक क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस यार, जब प्रेस के सामने कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या जो भी है वो लोग आते हैं, वो प्रेस को एड्रेस करते हैं, प्रेस के सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब देते हैं, और हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। भाई साहब, he will run government from jail. और Arvind Kejriwal arrest updates. Delhi CM brought to ED office. AAP says he will run government from jail. Arvind Kejriwal arrest updates. Delhi CM Arvind Kejriwal on Thursday was arrested in connection with the excess policy case, said leader Atishi. A team of the ED reached the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal on Thursday evening to question him in connections with the excise. ये कौन सा केस है? Policy case. As many as 4 to 5 phones and 2 tablets have been seized by the ED from CM's residence. This came hours after the Delhi High Court denied any interim protection from arrest to Kejriwal in connection with the summons issued to him by the ED in the liquor policy scam case. Oh, okay, I heard about it there, yeah. Oh, याद आ गया, भूल गया था, कोई नहीं भाई। Guys, listen, सुंदर घरों के दरवाजे बड़े होते हैं, समझे? सिद्धू मूसेवाला फादर एंड मॉम पर केस इन्वेस्टिगेशन हुई थी ड्यू टू हैविंग द बेबी बाय इलीगल वे। आई मीन ओवर एज हो गई थी, वो 58 है, लीगल 55 है IVF में। ओके, अच्छा भाई, आज लड़ाई हो गई मेरी दिल्ली में। उस चूतिया को समझा रहा था दैट हरियाणा वाले आर चिल एंड गुस्सा नहीं करते। Prime Minister Atishi said Kejriwal will remain the CM of Delhi. We have received news that ED has arrested Kejriwal. We have always said that Arvind Kejriwal will run government from jail. He will remain the CM of Delhi. We have filed a case in the Supreme Court. Our lawyers are reaching SC Supreme Court. While we will demand Supreme Court have an urgent hearing tonight, she said. Arrested by the police. All right. इस केस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। शिवदीप भाई, यही तो दिक्कत है पॉलिटिक्स में, एक चीज़ के चक्कर में 20 लाख चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। भाई मैं भी चाह रहा हूँ यार। हरियाणा के लोग तो MC हर जगह बेइज्जती करवा रखी है, साउथ इंडिया तक इज्जत खराब कर रखी है। अरे शिवदीप भाई, कितनी एज है? चलो कैसे चलूँगा यार, मैच सुबह जल्दी उठना है। I'll post one of these thumbnails. If anyone wants to send another thumbnail, go on. I'll post. Should I put my face here or not? मुकुल तो हरियाणवी है। Kaboom! भैया, I fucking completed 1 week without abusing. Alright. चलो guys, नमस्कारम, शुक्रान, शुक्रिया, धन्यवाद. Not at all, of course, Jeffrey, for joining the stream. अब हम चलता हूँ, हमका नीरज भैया इस हरियाणवी। अरे अब हम चलता हूँ, हमका सोनो है भैया। Alright. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. So no,
अब तो बाय बोलेगा ना, सुनो बोलेगा। मैंने कुछ मिस करा है क्या? कुछ मिस करा है क्या मैंने डिस्कॉर्ड का मेजर चीज़ कोई? खपूम हकून मटाटा, ये थोड़ी सी देखी, ये देखी। स्नेक मैंने मारी तो कल देखी थी ना, हाँ कल देखी थी ये देखी थी कल। हाँ नहीं, कुछ खास मिस नहीं करा। फिटिश, ओके फिट दैट, जॉन पीटरसन डिड दैट, ये मैंने देख ली थी आगे करके। मेरा सॉन्ग सुन लो लास्ट, ये वाला। भाई तो करवा देते मेरी स्प्रेड लव के चक्कर में जो शाम सवेरे नी मैनू तेरी लोड़ रहंदी है नी रात हनेरे। I like the visuals. अखियां दे विच तेरे अख नी साडा बहुत सिंपल, बहुत नाइस, वेरी वेरी सिंपल। कुड़े लुट के ही ले गई मैं तां सारा टाइम रवां तेनू तकदा नी तू अखां नाल दस गल्लां कह गई। रहंदी जुल्फां नू कुड़े तू सवार दी रखे नखरा भी अत तू कमाल नी दिल ले गई तू मैं यही वेट कर रहा था, मुझे पता था भविष्य सबको डिसअपॉइंट करने वाला है अभी। दे कुड़े हाण दी लावां लैणियां मैं तेरे नाल चार नी तू ला ले मेरे नाल सजना नी ला ले मेरे नाल सजना। कि चाहंदी है मेरे तो दस दे हीरिए नी Yo, भविष्य ब्लॉग्स। गई है जाने मेरी। आपने बोला था स्प्रेड लव, परसों कल भी बताया था आपको कि कंसेंट के चक्कर में मैं जेल हो गई। That's not what love is, my guy. ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ लिंक दे, लिंक भविष्य डिस्कॉर्ड भेज दियो। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੂ ਤੇਰੀ ਵਸਦੀ Unless if you can send it here, do send it. ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ख्वाब ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ। I like the simplicity in it. जिंदगी मेरी हीरिए मैं दिल ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ आपने ये भी नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। ਮੇਰੇ ਕੁੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ। ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ। It's okay. I like the visuals better than the song. I like the simplicity. Okay, the song maybe I like the simplicity. भैया ये लड़का पता है कौन है सिंगर जो फकरा इंसान की वीडियो में कार्टून सा बना हुआ था, अजीब ड्रेसिंग वाला? यार नो आइडिया। So guys, भविष्य vlogs, check it out. I'll quickly pin it. कहाँ है? Oh, there you go. You can check it out. मैं 5 मिनट रुक रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ मैं। This guy, have any one of you seen this guy? तू आखरी उम्मीद मेरी टूट किते जावी ना लुटी होई नू मैं जानी लुट किते जावी ना। तू आखरी उम्मीद मेरी टूट किते जावी ना लुटी होई नू मैं जानी लुट किते जावी ना। बदलदा वेखिया बदलदे वेखिया और पैणदे दुनिया ते सारे बदलदे वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल दरगी लावांगी जे हुण तू भी बदल गया मैं ते जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मरगी जावांगी जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मरगी जावांगी। What I love about this guy is when you watch this guy, it's like
it's not the actions, it's not what he's doing and this and that. It's not that. He's extremely present at the moment. मैंने इसके और जो बाकी की शॉट्स वगैरह देखे हैं, you can clearly see how improvisational it can be. ये डांसर को बहुत मारा था सीपी में पुलिस ने. हाँ, I heard. It's not the dance, or maybe that's what dance is. I don't know. If this is dance, then जो वो बाकी जो stage shows वगैरह पे हो रहे हैं, that's not dance, because this guy is my preference is this, of course. Deep, thanks for this. Alright. अभी तेरे ब्लॉग का लिंक मांग रहा था वो. हैं? Why do you like Joffrey का बी पोल? तो भविष्य ने क्या भेज दिया? अरे भविष्य. There you go. The last link. Okay, I'll change the. अरे. You come in the country. When I hit him, I didn't hit him clean. I'm not. I should have to put you. Mukul, what's your age? Like, tell me for real. Linus hates phone too, है. यार मैं तो सोच रहा था खरीदने की. पापा के लिए. Papa needs a phone, so let's see. धन्यवाद, thank you. Fuck off, Joffrey. What the fuck is wrong with chat? तुम कौन सा यूज़ कर रहे हो? Samsung S20 FE. तभी गुस्सा आता है मुझे. 36 का हूँ, इज्जत से बात करा कर, तभी गुस्सा आता है मुझे. नहीं, मैं इज्जत से बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि I have this relationship with you now. This is how I talk to you. Oh wait, what? अच्छा, उसकी वीडियो नहीं बंदेगी. There he is. Yeah, doesn't sit well with this music, right? Phone में भी iQOO का ले लो. यार iQOO का I think they're good for gaming, है ना? Google कीबोर्ड इतना हैंग क्यों करता है? यार मेरे में नहीं करता. Attention is the new. Interesting videos. ऐसी चीजें क्यों नहीं भेजते तुम लोग? स्पोर्ट्स में PUBG मोबाइल के अंदर जो हाईएस्ट है वो मतलब ये मान के चलो 10 लाख से लेके 70-80 लाख महीने की बात कर रहा हूं. एमए का डिग्री रखने के बाद सफाई कर्मी में सिलेक्शन नहीं. ऐसा परिस्थितियां ऐसी है, मजबूरी ऐसी है कि क्या किया जाए. पीएचडी करने वाला व्यक्ति सफाई कर्मी का आवेदन किया. 80 करोड़ 80 लाख यूथ हैं हमारे इंडिया में, और आज के टाइम में इंडिया बन चुकी है दुनिया की नंबर 1 यूथ पॉपुलेशन वाली कंट्री. एंड 2024 में इन्फ्लुएंसर्स आर टूल्स जो इसी यूथ को लीड कर रहे हैं और एक न्यू कल्चर को बना रहे हैं. सिस्टम हैक कर देने वाली बात मेरे पास में क्या है सिस्टम, क्योंकि हर कोई जानना. Alright, कल देखेंगे. I'll send this link on Discord. आज नहीं तो कल. मिस कर दी या पढ़ ली मेरी वाली चैट. भैया आप भगवान में मानते हो? लाइक इंडिविजुअल कोई पर्सनालिटी में? इंडिविजुअल पर्सनालिटी में नहीं. There's no way. If there is a true creator, you know, and we are the creation, then जो हमारा माइंड है वो कहाँ से comprehend कर पाएगा? And it's very convenient for us humans to be like, oh look, he was like this, and we know. How the fuck do we know? How the fuck could we know? Right? Baki, it goes against the whole spiritual idea anyways. Lead BC. भैया वर्ड तो यूज़ कर ही सकता है. यार मुकुल, see, I doubt Mukul you are 36. I doubt that. And that's why I don't want to do that. And if I start calling him bhaiya, how am I going to say fuck off Mukul? And then the whole chat would be weird, right? I love the fact that you're faceless. Hey. Once सब पढ़ गए. Thank you chat. All right. Chat भाग जाओ, फिर मैं भी भाग रहा हूँ. I was waiting, जिसको क्लिक करना है क्लिक करो जल्दी से जाके.
मुकुल हाँ तेरी फ्यूचर वाइफ को. Nilesh is not young to see his hairline. True. My hairline is fine actually. This is what hairline is, right? This is completely fine. The issue is over here. नीचे हुन ताऊवी. Luke Thomas is live. जाओ good night, take care. Alright guys, take care, good night, bye bye. हम चला. Click on Bhavish's link. Thanks for joining. प्यार फैलाओ consent के साथ. What's your age? I'm 26 man. Alright, चलो. See you guys. Take care. I'll see you tomorrow. Goodbye. हंसने जा रहा हूँ जाफरी, कल ही आऊँगा.